Assalamu alaikum girls and welcome to the second day of your bridge course on fundamentals of information technology. I am Ms. Naba Moment, that is Naba ma'am from our department of IT. Today we are going to study about Google tech tips and tricks. Most of you must be aware of it. Many of you are very familiar with Google. Obviously, everyone has heard the name. So, today we are going to see certain tips and tricks on how we can make our search more efficient and how we can get proper results for what we are searching. Because normally, what happens is when we are searching for a particular thing, we get multiple types of results. So, when we want to narrow down our results, there are certain tips that you can use instead of going through all the results that come generally. All right. So, without further ado, so now let's start. The first trick that we will directly start with the trick. I'm going to share my screen. I hope you are aware that you have to hold your phone in landscape mode so that you can see the entire screen. So over here, I have opened my default browser. Is the screen visible? Can one of you just unmute and confirm? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thank you. So, I have opened my default browser over here. I have opened Google Chrome. You might be having a different browser in your phone. You might be using Opera or something else for that matter. So, first of all, in Google Chrome, I have signed in. As you can see over here, I have already signed in. My account is already signed in over here. So, it will be easier for me to search. Now in this, the first one that we are going to see is the first step is you have to use the tabs. Now we are not talking about the tabs that come in Google Chrome over here. All right, we are talking about the tabs that are available in Google. So if you can see over here, we are having two tabs. The first one is all and the second one is images on top. Look, clicked on images and the page has changed to Google Images. So when I search on this, when I type something in the search bar, it will directly search for um, images in the entire Google database. So we are supposed to use these tabs. This will make our search work easier. Like for example, in school projects, normally we try to search for some very nice images and also we look for the content. So it is not necessary that you get what you desire on the same page in the same result. You might take content from a different result and you can take images directly from the Google database if you get a better, clearer image. Okay, so for now, I'm going back to the all tab. Over here, for example, I'm going to search for something like, okay, let's directly search Google over here. So let's see what comes up. We are getting all sorts of things over here. We are getting everything about Google over here, and we are going to get its history and all that kind of things. Anybody's aware who's the CEO of Google? Anybody would like to reply in the chat box? Yes. Um, who is the CEO of Google? I think you should be aware of this. Ma'am Sundar Pichai. Great. Is this Zainab? No, Kushi. Kushi. Very good, Kushi. Okay. Sundar Pichai, who is an Indian, so we should be quite proud of it. He is the CEO of Google. Is the screen visible to everyone? Okay, so now I just search for Google and I'm going to get lots of things about Google over here. Look, I'm going to get some Twitter tweets and all, and this way we are getting a lot of information. We are getting entire excerpt from Wikipedia over here, and these kind of things will be there. So what I can do if for example I'm writing it for a school project or something, that's I can take some information over here from Wikipedia, from this Wikipedia page. If I click on this Wikipedia, it will direct me to the Wikipedia page, and from here I can take whatever I want. Now for example, over here we have two images. The first one is of Google logo and the second one is Google headquarters. Where is it? It's located somewhere in the west. So for example, if I want a different image for the headquarters, so what I can do over here on this Google page,
I can directly go to the images tab. If you see, it is the fifth tab over here. So over here, now I had simply typed Google before in the search bar. So now I can type over here Google headquarters because I want an image of the building. So I'll type Google headquarters, and finally I'm going to get lots of images. I think this is the first image that is the same that we saw in the Wikipedia page. So if you see, let's compare. Let's compare this first image. Is the screen visible? I just rotated my phone. You can also rotate Yes, your phone. ma'am. It will be easier for you to look at the images. So over here, if you see this first image, the first image over here is same as this image. But if you see, I think the time on which the photos have been taken are different. Over here, the building looks quite black, and over here it looks blue because it's reflecting the sunlight. So I think personally I would prefer this image because it looks a little bit clearer. Even the Google logo is better visible over here. So this way we can get lots of results when you go directly on the images tab. So the first step is you have to use the tabs in Google search. On top of every search, you are going to get a number of tabs. These are the tabs. First one is all. That is not, I think that's not visible right now over here because of my tool. Next is books. The third one is news, and then you have videos, images, maps, flights, etc. Okay, so these are the various tabs that are available. Normally these tabs will be available, so it will define what kind of search you have to do. If you need images, you have to directly click on the images tab. For example, if I want to see news, which tab will I click on? Can one person unmute and tell me? I want to see the news about Google right now. Okay, thank you. So, girls, I asked a question. I have already typed Google headquarters over here. If I want to see the news, which tab will I click? News tabs. News tab. Okay, can you tell me where is the news tab over here? Is it the first one? Is it the second one? Third one. Third Yes, one. excellent. It's the third tab. I'm sure you people might be aware of it, but right now we are going to look into it in detail. Okay, the next thing that we are going to see, this was the first step. I hope you people noted it down. The first step was you have to use the tabs. Okay, so please note it down somewhere if you're writing it down. The first step that you're going to use is you should use the tabs that are already available on Google. All right. Now let's move on to the second tip. The second tip is you should use quotes. Now you might be so the second tip that we are going to do is use quotes. So what exactly are the quotes over here? If you're writing it down, you may write this point. Use quotes. Is it visible to everyone? This is the second tip that we are going to use. All right. So I hope you have written. This is the second one. Now I'm going to search over here, for example, syllabus Mumbai University. Okay, I'm searching directly, and since my images tab was already open, you might see we are directly getting images. Okay, so for now, I want to see all the results. So I will click on all, and we are going to get lots of results over here. All right. So if you see the first one, it's syllabus Mumbai, University of Mumbai, fine. And then as you go down, you are going to get syllabus for engineering. And okay, there is one thing that I want you people to focus on. Um the first result, if you see, the first result is from mu.ac.in, which is actually the official University of Mumbai website. All right. The second one is old mu.ac.in. So it is giving you the old syllabus. Now the third one, if you see, it is archive. I hope it's visible. It is archive.mu.ac.in. That means it is from the archives. That is the old, you can say the old files that are there in Mumbai University website, the digital files. From there, it is getting the result. Okay. And if you come to this result, all right, this one. This is from muquestionpapers.com. So over here, you might get something different.
maybe this result, if I click on this, maybe I will get a very different result. It might not be a syllabus from Mumbai University at all. Okay. And even the third, the next one, if you see, it's engineering.vidyalankar.org. So again, that is going to be a little bit different. So this way you are going to get lots of different things. Now when you are saying that we should use quotes, what exactly I will do over here, I will put a quote in the beginning, double quote that is, and in the end also I will put a double quote. And when I click on search, what exactly is going to happen? All the results in which these three words are present, these three words will be there. These three words must be present in the search. So this kind of result I will be getting. If you look for it, see over here you are getting syllabus Mumbai University. In the second one also it is syllabus, but the it might be in the result, मतलब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, after I click on this, ये लिंक को जब हम ओपन करेंगे उसमें आपको वो वर्ड मिलेगा. Next again in this result is syllabus Mumbai University. If you had observed in the previous result, there were words like engineering and all those kind of things were there, but right now we are getting only these kind of results. Again in the next one, if you see over here, syllabus University Mumbai. So this is another trick where you are narrowing down your result by using double quotes around your search. Okay, मतलब आपका जो भी सर्च है आप क्या करोगे, उसको दोनों तरफ डबल कोट लगा दोगे. उससे क्या होगा, गूगल जो है बहुत ही स्पेसिफिकली सर्च करेगा, जितने भी आपके पैरामीटर्स है उनको ढूंढ के निकालेगा. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डोंट पुट डबल कोट्स, कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर कोई लंबा सा फ्रेज डालते हैं सर्च करने के लिए, वी गेट लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स, बट व्हाट हैपेंस इज इन सम रिजल्ट्स, जैसे कुछ रिजल्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाते हैं. ये फर्स्ट वाले रिजल्ट में आपको क्या होता है ना, यहाँ पे नीचे लिखा होता है मिसिंग, ऐसे एक लिखा होता है मिसिंग, और कोलन करके ना, फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक वर्ड है जो ये रिजल्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल. ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा मुंबई, फॉर एग्जाम्पल इफ दैट वर्ड इज नॉट देयर. तो ऐसे टाइप के भी रिजल्ट्स आते हैं. कब आते हैं? जब आप डबल कोट्स नहीं लगाते हो तब. अगर आप डबल कोट्स लगा दोगे तो क्या होगा, सारे के सारे वर्ड जो है वो कंसिडर किए जाएंगे. ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द tricks. Now let's move on to the third one. The third trick that we are going to use will be to use a hyphen to exclude words. Okay, I'm going to just type it over here. In case you're noting it down, please note it down. The phrase is use a hyphen to exclude words. I hope the screen is visible, girls. If the screen is not visible, please let me know. And if you feel like it's very small or something like that, you can zoom it on your mobile. Okay, आप अपने मोबाइल पे हम लोग जैसे इमेज जूम करते हैं, उसी तरह आप जो स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है, आप उसके ऊपर दो फिंगर से पिंच आउट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा. ठीक है, so this is the third point. You have to use a hyphen to exclude some words. Now what is the meaning of exclude? You are going to remove some words from your search. How you are going to remove? जब आपको remove करना है तो आपको वो word type, आप बोलोगे कि हम वो word type ही क्यों कर रहे हैं जिसको remove करना है. तो this is a little bit different concept. Sometimes what happens is हम लोग कुछ ऐसी चीज सर्च करते हैं जिसके multiple meanings रहते हैं. For example, यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ cream. Okay, sorry. I'm typing cream over here. Okay, so if you see the result, I'm getting multiple results. Upper first I got ice cream shops. Next, if you see, I got again cream. What is cream? Cream is whipped cream and all that kind of things. Okay, I'm still scrolling. Next, again cream, homemade whipped cream, easy ways to make ice cream. So this is like all different kinds of things are there. Again, another cream, different type of cream is there. So now over here I typed just cream and I got these kind of results. Over here, I'm going to type, sorry, this was not what I intended to type. Over here, I'm going to narrow down my result. I'm going to write minus and I'm going to put ice. So what I have typed, cream hyphen ice. So what is this going to do?
in the search result that I saw that we saw before, there was when I typed cream, there was whipped cream, there was ice cream as well. There could have been face cream, but since I had searched before also, so it already narrowed it down and gave me only whipped cream and ice cream. So over here, I'm going to remove the ice cream from that cream. So let's see what happens now. Over here again, if you see this, these starting things are coming from directly from the location based services, so that's the reason it is not going. But over here now, if you see, I had typed cream and then I typed minus ice. That means ice cream, the word ice is going to be removed from there. So wherever there are results like ice cream, that result will not be shown over here. All right, so the first one that we got, see over here, it is cream pharmacy. I hope the screen is properly visible. Cream pharmacy. So obviously, if it is going to be a cosmetic cream, again you got to look at this. You got face cream, and again over here face cream, again cream and moisturizer. Again now this is some song in which there is a word cream. So that is also over there in the result. Again another song. Another one over here again, that song on the same song on Amazon. Now again Amazon result over there. See, now you got YouTube videos also, it is the same thing. Those are it, वो song का नाम ही cream है इसीलिए वो आ रहा है. Just because the result does not contain the word ice, it is going to be there in this entire list. Okay, I hope this is clear to everyone. Yeah, ma'am. Okay, if you Yes, have ma'am. any doubt, you can unmute and ask me. All right. Now, so after that, we are going to see the next point. We covered 3 points, right? One of you can unmute and tell me what was the first point? What was the first trick that we saw? To use the tabs. Very good. You have to use the tabs. That was the first trick. Now somebody else can tell me what was the second trick? Quarters. Yes. Okay. Now third one that we just covered. What we have to do? Double. We have to use hyphen. The second one was using double quotes, and the third one was we have to use hyphen. Okay, I hope you people are noting it down. Now, the fourth one is you have to use a colon to search specific sites. Again, I'm going to type that over here. Use a colon to search specific sites. This is the fourth one that we are going to see. I hope this sentence is visible to everyone. So all of you just write this down as the fourth point. Okay. मैम स्पेसिफिक के आगे क्या है? Sites. 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 Okay. Now, over here, we are going to cover two things. It's not just specific sites. You can also write specific sites के आगे आप लिखो and इसी के आगे लिखो and file types. ये इसके आगे लिख लो sites and file types. Okay. All right. So now let's start. I'm going to search syllabus again. All right. सिर्फ syllabus टाइप किया है. So over here I got the dictionary. From the dictionary it gave me the definition of syllabus. It is going to tell me what words are similar to syllabus. Next, again definition of syllabus. There is a video. What is a syllabus? You all know what is a syllabus. Wikipedia पे syllabus क्या होता है? University of Mumbai पे syllabus कौन कौन सा है? It is showing that. Syllabus from Merriam-Webster dictionary. Again, it's going to take, it's a very famous dictionary, it's a very nice thesaurus. तो उसमें से जो definition आता है syllabus का वो दिखा रहा है वो. Then so it's giving me various results. Now what I want to see, what different syllabus are present on Mumbai University website. So I just showed you Mumbai University की जो website है उसका नाम है mu.ac.in.
सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर। सी, सिलेबस जो था वो मेरा वर्ड था जो मैं सर्च कर रही हूँ। मेरे वर्ड्स मल्टीपल भी हो सकते हैं। आई हैव यूज्ड ओनली वन वर्ड ओवर हियर, दैट इज सिलेबस। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई टाइप्ड इज साइट एंड कोलन। ये जो दो डॉट्स है इसको कोलन बोलते हैं, राइट? और जो एक डॉट और कॉमा रहता है इसको सेमी कोलन बोलते हैं। सो आई हैव टाइप्ड साइट और यहाँ पे हमने कोलन लगाया है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है mu.ac.in, ये उस वेबसाइट का नाम है जहाँ से मुझे सिलेबस देखना है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सर्च दिस। इफ यू सी, ऑल रिजल्ट्स विल बी फ्रॉम दिस वेबसाइट ओनली। कौन सी वेबसाइट? mu.ac.in। तो इसके आगे जो है, mu से पहले जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे ये वाले रिजल्ट में देखो old.mu.ac.in, लेकिन ये mu.ac.in जो है इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो mu.ac.in जो है वो ही मेन रहेगा। उससे पहले और भी कुछ लिखा हुआ रह सकता है, जैसे ये सेकंड वाले में दिख रहा है ओल्ड डॉट, लेकिन उसके आगे का जो है वो पूरा सेम है mu.ac.in। So now over here, if you see all the search results, we are getting everything from that website only। जितने भी सिलेबस हैं वो सारे उसी वेबसाइट से हमको मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे अगर हम ये मोर रिजल्ट्स, जो नीचे ये मोर रिजल्ट्स बीच में अभी आपको दिख रही है मोर रिजल्ट्स वाली बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो भी आगे भी जितने रिजल्ट्स आएंगे सब उसी वेबसाइट के रहेंगे। या तो डायरेक्टली mu.ac.in के रहेंगे, या तो फिर old.mu.ac.in के रहेंगे, या फिर यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम्पल हमें मिला, देखो archive.mu.ac.in। जो ये mu.ac.in है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स हो गया है। जो हमने सर्च में डाले हैं वो फिक्स हो गया है, उससे पहले कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप जितने भी सर्च करेंगे सब में आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। सब जो मिलेगा वो उसी वेबसाइट से मिलेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नोटिस ओवर हियर, ऑब्जर्वेशन एक आपका रहना चाहिए। यहाँ पे सिलेबस के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब दिस इज अ नॉर्मल वेब पेज। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल वेब पेज रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ये वाले रिजल्ट के आगे भी कुछ नहीं लिखा है। इस तरह आप देखोगे, इवन थर्ड वाले के आगे भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो रिजल्ट आया है यहाँ पे देखो बॉक्स में पीडीएफ लिखा है। इसका मतलब जब हम ये सर्च रिजल्ट जो है इस पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, एक पीडीएफ हमारे फोन में डाउनलोड होके ओपन होगी। अगर आप इसको कंप्यूटर पे भी ट्राई कर रहे हो तो क्या होगा, आपके पीसी पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, या तो फिर वो डायरेक्टली लोड होगी, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये वाला जो रिजल्ट है इसकी ये जो लिंक बनी है ये क्या है, एक पीडीएफ की लिंक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ पीडीएफ खुलने वाला है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो और भी पीडीएफ के रिजल्ट्स है। ओवर हियर ऑल्सो वी आर हैविंग पीडीएफ, ओवर हियर ऑल्सो वी आर हैविंग पीडीएफ ना। नॉर्मली जो सिलेबस रहता है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही रहता है, इसीलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स जो यहाँ मिलेंगे वो पीडीएफ के ही फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेंगे या तो फिर इट विल बी अ सिंपल रिजल्ट जिसके अंदर नॉर्मल वेब पेज खुलेगा। ठीक है, सो एज वी स्क्रॉल डाउन सी मल्टीपल जो है जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं ज्यादातर सब पीडीएफ फॉर्मेट में ही आ रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, am I audible? Is this clear to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पे यस अ, मैम। हमारे पास जो रिजल्ट्स आए थे वो या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में थे या तो फिर प्लेन वेबसाइट के फॉर्मेट में थे। अब मुझे और भी ज़्यादा कॉन्स्टेंट लगाना है। आई एम सेइंग कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ वाला रिजल्ट दिखना चाहिए यहाँ पे पूरे इसमें रिजल्ट में। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना जहाँ पे पीडीएफ बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है वो वाला भी नहीं देखना है मुझे, मुझे डायरेक्टली पीडीएफ देखना है। तो व्हाट आई कैन डू, ये साइट जो आपने लिखे हो इसी के आगे आप एक स्पेस दोगे। यहाँ पे आप लिखोगे फाइल टाइप। देखो फाइल टाइप, इसमें बीच में स्पेस नहीं रहेगा, और इसी के आगे आप अगेन कॉलन लगाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे पीडीएफ।
ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। आप जो है सर्च रिजल्ट एक एक जो है उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल करके आप लिख लो, आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसके नीचे एग्जाम्पल करके लिख लो। क्या एग्जाम्पल है? सिलेबस इज योर सर्च, देन यू आर राइटिंग साइट, फ्रॉम विच साइट यू वांट, साइट लिखोगे, उसके आगे कोलन लगा के mu.ac.in लिखोगे, उसके आगे आप फाइल टाइप का एक पैरामीटर लगा रहे हो, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। फाइल टाइप का एक पैरामीटर लगा रहे हो जिसमें आप बता रहे हो कि आपको किस टाइप की फाइल चाहिए। अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। सो नाउ लुक, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड लेट्स सी। देखो जितने भी रिजल्ट्स आपके आएंगे सब पीडीएफ वाले ही रहेंगे, आपको एक भी प्लेन रिजल्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा। मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे देखो सब पीडीएफ 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 ही रहने वाला है। अगेन मोर रिजल्ट्स, मल्टीपल पेजेस, आप कितना भी लास्ट तक चले जाओ आपको सब पीडीएफ ही मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वेबसाइट, एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, एनी पीपीटी, नथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। क्योंकि आपने सर्च रिजल्ट में ही जो सर्च किया था उसमें पैरामीटर डाला था फाइल टाइप पीडीएफ। Now, for example, let's take another example. I'm going to remove the site because I know that मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो है जितने भी सिलेबस की फाइल्स रहती है वो ज़्यादातर पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है, इसीलिए हम है ना ये निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम पीडीएफ की जगह पे हम लोग यहाँ पे डीओसी डालते हैं। व्हाट इज डीओसी? डीओसी इज वर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज ऐसी फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होती है, ठीक है। सो लेट्स सर्च ओवर हियर, हम देखते हैं इंटरनेट पे क्या क्या मिलता है। फर्स्ट जो है इसने हमें डायरेक्टली अगेन ये दे दिया डिक्शनरी का, मतलब उसने पहले सिलेबस का डेफिनेशन बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज सिलेबस। अब देखो आप जहाँ पे आपको बॉक्स में पीडीएफ मिला था लास्ट टाइम वहां पे देखो डीओसी लिखा हुआ है। मतलब अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, आई हैव रिमूव द मुंबई यूनिवर्सिटी फिल्टर, जो साइट वाला पैरामीटर था वो हमने अभी रिमूव कर दिए थे। तो इसीलिए अभी हमको जितने भी आएंगे ना रिजल्ट सब दूसरी दूसरी वेबसाइट्स के आएंगे, जरूरी नहीं है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के आएंगे, बट आई हैव पुट द फाइल टाइप पैरामीटर, तो आई विल गेट ऑल डीओसी रिजल्ट्स। देखो डीओसी डीओसी, यहाँ पे भी डीओसी आया। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन में क्या होगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा और उसके बाद वो ओपन होगा, ठीक है। और कंप्यूटर पे अगर आप कर रहे हो तो शायद वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, देखते जाओ, इट इज ऑल डीओसी, ओनली डीओसी इज गोइंग टू कम। हम यहाँ पे मोर रिजल्ट्स पे भी क्लिक करेंगे तो भी डीओसी ही आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सी वन मोर टाइप, हमने पीडीएफ देखे। I hope you are noting this down. We saw PDF, we saw DOC. Now we are going to see PPT. ठीक है। PPT क्या है? जो तुम्हारी स्लाइड्स चलती है वो। तो अगेन पहले वो आपको ये बता रहा है कि सिलेबस की मीनिंग क्या है, उसके बाद देखते हैं। देखो क्या आया, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी आया। ऑल पीपीटी, ओनली पीपीटी इज गोइंग टू कम। ये यूजफुल इसलिए रहता है क्योंकि पीपीटी जो रहता है वो ज्यादातर एजुकेशनल कंटेंट रहता है, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट पीपीटी रिजल्ट एंड इट इज बेटर फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर एजुकेशनल रिजल्ट्स। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है सबको? या मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है कौन कौन सी चीजें हमने सर्च की है। यूजर कोलन टू सर्च स्पेसिफिक फाइल्स एंड फाइल टाइप, इसमें हमने क्या लिए, पहले हम लोगों ने सिलेबस, मुंबई, फिर उसके बाद साइट, उसके आगे mu.ac.in डाले थे, ये हमारा पहला सर्च था। इसी के बाद हमने सेकंड सर्च किए थे सिलेबस, साइट, mu.ac.in, उसी के आगे एक स्पेस देके हमने लिखे थे फाइल टाइप और कोलन लगा के लिखे थे पीडीएफ। फाइल टाइप के बीच में ये ध्यान रखो स्पेस नहीं रहेगा। और हाँ एक चीज और, जब हम लोग ये सर्च कर रहे हैं यहाँ पे भी जब फाइल टाइप या साइट आप लिख रहे हो, ये कोलन लगा रहे हो, जो दो डॉट आप लगा रहे हो उसके पहले और उसके बाद दोनों जगह स्पेस नहीं रहेगा। अगर आप स्पेस डाल दोगे तो आपका पूरा सर्च जो है वो खराब हो जाएगा, वो उस पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, गूगल को नहीं समझ में आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोलन जो आप लगा रहे हो उससे पहले क्या आएगा, आपका पैरामीटर आएगा, दैट्स मीन्स इट कैन बी साइट, और फिर उसके आगे कोलन के आगे आप क्या डालोगे, साइट का नाम डालोगे कि आपको कहाँ से रिजल्ट चाहिए। आप स्पेस बिल्कुल नहीं डालोगे इसके बीच में। साथ ही में दूसरा पैरामीटर जो आप लगा सकते हो वो है फाइल टाइप।
फाइल टाइप के अंदर हम लोगों ने तीन देखे। कौन कौन सा था? फर्स्ट वाला था पीडीएफ, सेकंड वाला था डीओसी, थर्ड वाला था पीपीटी। ठीक है, आई होप यू हैव ऑल नोटेड दिस डाउन। एम आई गोइंग वेरी फास्ट? सबको क्लियर है? No. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, उसके बाद द फिफ्थ थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, द फिफ्थ टिप is how to find a link, a page that links to another page। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू जस्ट टाइप द पॉइंट, आप लोग लिख लो। हाउ टू फाइंड अ पेज दैट links to another page। I hope you all are noting it down. This is the fifth one। Okay, लिखे पूरा। जो यहाँ हम टाइप कर रहे हैं आप वो लिखो, ठीक है? जो नीचे आ रहा है उसको मत देखो। हाउ टू फाइंड अ पेज दैट लिंक्स टू अनदर पेज। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों का जैसे ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आने वाला रहता है तब देखो बहुत सारे न्यूज वाले जो वेबसाइट्स रहते हैं वो भी इस चीज को कवर करते हैं कि ट्वेल्थ का रिजल्ट जो है ये डेट को आने वाला है, एंड इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट क्लिक हियर। ये आप लोग ने देखे होंगे। जब हम लोग वहां पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो हमको ऑफिशियल जो हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की जो वेबसाइट रहती है वहीं पे लेके जाता है। आपका रिजल्ट कभी भी आपको कोई दूसरे वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। आपको वो सिर्फ और सिर्फ, अगर ट्वेल्थ का आप ढूंढ रहे हो तो महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे ही मिलेगा, जो स्टेट बोर्ड है आपका। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, मल्टीपल पेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे रहेंगे जो ये न्यूज को कवर करते रहेंगे ओवर द मंथ। वो लोग पहले से ही बताते रहेंगे कि हाँ देखो रिजल्ट आने वाला है, ये डेट को आने वाला है, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो ये वाली लिंक पे क्लिक करो। और वहां पे दूसरे कलर में ना वो लिखा रहता है क्लिक हियर, या फिर लिखा रहेगा क्लिक हियर फॉर सीइंग रिजल्ट ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ बोर्ड्स, ऐसे करके कुछ भी लिखा रहेगा वहां पे। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप उस पर क्लिक करते हो अल्टीमेटली सारे न्यूज चैनल के पेजेस जितने भी रहते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। कौन सा पेज रहता है वो? आई जस्ट टोल्ड यू, वन ऑफ यू अनम्यूट एंड टेल मी, कौन से पेज की तरफ फॉरवर्ड करेंगे वो लोग हमको? यस गर्ल्स, नहीं समझा क्या? आवाज आ रही है? Ma'am, please repeat once again. ओके, लुक, द कंसेप्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ठीक है, पहले क्या, जब आप अभी आप लोगों ने ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया है ना। जब फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर में अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया, तो अगस्त से ही हमको ऑब्वियसली पता रहता है कि एक दो महीने में रिजल्ट आने वाला रहता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता रहती, राइट? एग्जैक्ट डेट कभी कभी वो लोग फिर रिवील करते हैं कि हाँ एग्जैक्ट डेट ये है, इस दिन ये टाइम पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और फिर हम लोग वहां पे टाइप करते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्वेल्थ रिजल्ट। तो क्या होता है, हमको अगेन यहाँ पे बहुत सारे जो है पेजेस मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। किस पे? गूगल के सर्च करने के बाद बहुत सारी लिंक आती है हमको, इस पे क्लिक करो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड वाला रहेगा उसमें भी लिखा रहेगा क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट, ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो आपका ट्वेल्थ का बोर्ड का रिजल्ट आपको अगर देखना है वो आपको कौन सी वेबसाइट में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो वेबसाइट जो आपके बोर्ड वालों की है, सिर्फ उस पे आपको सीट नंबर डाल के आपका रिजल्ट देखने को मिलता है ना। तो व्हाट हैपेंस इज, जो इतने सारे पेजेस है जो आपको उस पेज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, आपको बोल रहे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड वाला पेज है, जब हम क्लिक करते हैं ना तो क्या होता है, जैसे हम किसी को पॉइंट करते हैं ना कि देखो दैट पर्सन इज गोइंग देयर, हम किसी को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अभी किसी से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, जैसे कोई सेलिब्रिटी अगर आपके सामने से जा रहा है तो कितने सारे लोग उसकी तरफ बोलेंगे देखो 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 वो वहां पे जा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप ट्वेल्थ का बोर्ड का रिजल्ट निकालना चाहते हो तो वो एक वेबसाइट है, वो सेलिब्रिटी है, वो जा रही है, वो वेबसाइट जो है वो चालू है। ठीक है, तो सारे न्यूज वाले चैनल उसकी तरफ पॉइंट करेंगे, देखो देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पे तुमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कर रहे हैं, इतने सारे मल्टीपल न्यूज के पेजेस पॉइंट कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर पेज पे, किस पे? महाराष्ट्र बोर्ड के पेज पे।
तो वो उस एक पेज पे पॉइंट कर रहे हैं। हमको अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से पेजेस ऐसे हैं जो उस एक पेज की तरफ जो है पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जांपल देखोगे तो। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग आई वांट टू सी admission link and I'm going to put colon over here and type mu.ac.in. Again I'm typing mu.ac.in because हमारा जो हायर एजुकेशन रहता है वो हमारे जोन में जो रहता है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का ही रहता है। मेजोरिटी जो रहता है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का ही रहता है। तो अभी ये जो सर्च है इसको लिख लो, ठीक है। ये जो है आपका एग्जाम्पल रहेगा फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए। आप क्या लिखे हो, पहला वर्ड है आपका एडमिशन, उसके आगे आप स्पेस दे रहे हो, मतलब आप सर्च क्या किए हो कि एडमिशन लेना है आपको। तो कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो आपको बता रही है कि हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना चाहिए, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है we are going to write first our word that we are going to search। जो हम लोग वर्ड सर्च करना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल वर्ड्स भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड रहे, जैसे पिछले बार भी बताया आपको। उसके बाद आपका पैरामीटर क्या है, लिंक, और फिर कोलन है। देखो अगेन इसमें भी सेम चीज है, कोलन से पहले और कोलन के बाद स्पेस नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम अपना वेबसाइट का नाम डालेंगे कि हमको कहाँ से चाहिए वो। ठीक है, सो so over there, now link mu.ac.in you are going to search. Let's see the search result. Okay, now over here what you are going to get, you are going to get multiple pages। just see the result, इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। फर्स्ट वाला जो है वो किसका रिजल्ट है, देखो mu.ac.in का ही रिजल्ट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी उसी का है, थर्ड वाला भी उसी का है। यहाँ पे हम साइट पैरामीटर नहीं लगाए हैं, साइट पैरामीटर नहीं लगाए, हम यहाँ पे कौन सा पैरामीटर लगाए, हम यहाँ पे लिंक पैरामीटर लगाए हैं। लेकिन फिर भी हमको देखो पहला तीन रिजल्ट जो है वो mu.ac.in का ही या ओके। सो फर्स्ट रिजल्ट आया mu.ac.in का, सेकेंड भी वही आया, थर्ड भी वही आया, फोर्थ वाला भी वैसे ही आया। हम लोगों ने यहाँ पे साइट पैरामीटर जो है वो नहीं लगाया है, हम लोगों ने लिंक पैरामीटर लगाया है। फिर भी हमको आप देखो सिर्फ और सिर्फ mu.ac.in का ही आ रहा है। लेट्स गो डाउन, लेट्स सी ओवर हियर, लुक यहाँ पे mu.ac.in, यहाँ पे भी ओवर हियर वी गॉट अ डिफरेंट लिंक, admission.aglasem.com। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम रहते हैं वेबसाइट्स के। सो वी गॉट admission.aglasem.com, मतलब आप अगले सेम में एडमिशन ले रहे हो, उन लोगों ने वैसा नाम दिया है। तो लेट्स गो बैक, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। सॉरी गर्ल्स, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। लेट्स सी फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन। हम लोगों का सर्च क्या था, एडमिशन स्पेस देके लिंक और कोलन देके mu.ac.in। इसके अंदर हम लोग ने जो सर्च किया उसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में पहले सिर्फ mu.ac.in का रिजल्ट आया, लेकिन आप नीचे देखो तो एडमिशन डॉट ये अगला सेम डॉट कॉम, इसमें देखते हैं। हम इस पे जब क्लिक करेंगे, सी द URL ओवर हियर। URL क्या होता है, यहाँ पे ये जो एड्रेस हम टाइप करते हैं, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ देखो इस पे ध्यान दो, दिस इज द URL। ओके, आई एम गोइंग टू नाउ सी ओवर हियर। ये हमको है ना बताने वाला है कि यूनिवर्सिटी जो है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है। फाइनली लुक एट दिस, ये रेड वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअली, ये लाइन क्या है, रीड दिस लाइन। इन दिस पेज वी आर प्रोवाइडिंग लिंक्स टू अप्लाई फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशंस। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये हमको लिंक देने वाला है। ये जो है ये खुद भी एक लिंक है, ये रेड कलर में है तो समझ में आ रहा है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह नीचे देखो एक टेबल बन के आया है, टेबल में भी देखो यहाँ पे अप्लाई हियर लिखा हुआ है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, लेट्स सी हम इस पे क्लिक करने जा रहे हैं। Sorry, this is an ad, we just have to close it। Look at this, ये कौन सा पेज आया, दिस इज द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पेज। ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पेज है। ऊपर देखो MUMOA.digitaluniversity.ac, ये जो है हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जब आप उस पर एडमिशन लेने जाते हो ये तब आता है। देखो MUMOA दिख रहा है सबको पूरा URL, MUMOA.digitaluniversity.ac।
दिस इज अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वेबसाइट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, अभी आप बोलोगे यहाँ पे हुआ क्या, हम तो दूसरे पेज पे आए थे लेकिन हम घूम फिर के कहाँ आ गए, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की वेबसाइट पे ही आ गए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है, आपको जो है जो सर्च रिजल्ट आएगा, इतना सारा सर्च रिजल्ट आएगा, आप बोल रहे हो सर्च रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन वो घुमा फिरा के मुझे mu.ac.in पे ही लेके जाना चाहिए। तो ये आपको कब हेल्प करेगा, जब आप डायरेक्टली देख रहे हो कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। जब आप इस तरह से सर्च करोगे तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा रिजल्ट दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमको कह रही है कि हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना चाहिए। सो मुंबई यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज वन way of searching. This was the fifth point. Can somebody revise first point क्या था? What was the first point? How to find a page that links to another page. Okay, this was the fifth point. I'm saying what was the first point? The first trick Use that we tabs, studied. ma'am. Use the tabs. tab, Very good. Use Very good. use tabs. tabs, Second wala, Use the quarter, acronym. Use use quarters. quotes. Use the quotes. ठीक है, it was not quarters girls, it was quotes. You have to use quotes. Quotes किसको बोलते हैं, जो डबल कोट हम लोग लगाते हैं ना उसको quote बोलते हैं। थर्ड वाला क्या था? Colon. colon, हाइफन। थर्ड वाला hyphen, हाइफन था। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप लोगों ने शायद सही से नोट डाउन नहीं किया, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है हाँ रॉन्ग है तो उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। सो यूज अ हाइफन। द नेक्स्ट वन विल बी, फोर्थ वन विल बी Colon. colon, कोलन। use टू colon, सर्च व्हाट, क्या colon, लिखिए उसमें, टू सर्च के आगे specific क्या है, sites and file स्पेसिफिक Sites types. and साइट्स file एंड फाइल types. टाइप्स। वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद फाइंड अ पेज दैट Page लिंक्स टू one अनदर to पेज, another यहाँ पे page. ये वाला जो था, हाउ टू फाइंड अ पेज, हाउ टू लिंक टू अनदर पेज। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट वाज समवॉट क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद the next one, that next trick that we are going to see is you have to use the asterisk wildcard. ठीक है, तो I'm going to type it over here. Just see the spellings properly and write. ठीक है, use the asterisk wildcard. Okay. Don't look at the things that are given down. जो पहली लाइन आप उसी को देखो गौर से, वही लिखो। ठीक है, use the asterisk wildcard. This is the sixth point. Have you written the point? Yes, ma'am. Okay, so now let's see how we are going to use the asterisk. What is the asterisk? ये जो हमारा स्टार रहता है ना, जो हम ये स्टार डालते हैं, ये स्टार को asterisk बोलते हैं। ठीक है, now यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है कि आपने क्या करना है, स्टार के आगे पीछे आपके वर्ड्स लिखने हैं एंड देन यू विल सर्च। सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट ओवर हियर। आई एम गोइंग टू टाइप वेयर देयर, ये अभी इसके नीचे देखो वो पूरा कोट आ रहा है, क्या है वो, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। ये एकदम फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब है, तो आई एम नॉट सर्चिंग फॉर दैट। हमने वेयर देयर डाले, स्टार डाले और यहाँ पे वे डाले। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, लेट्स सी। आप एग्जाम्पल में लिख लो कि हम लोगों ने ये सर्च किए थे, ये सिक्स्थ पॉइंट का एग्जाम्पल, वेयर देयर स्टार वे। ठीक है, सर्च रिजल्ट्स देखो, फर्स्ट वाला क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सेकंड वाला अगेन वेयर देयर इज अ वे देयर कैन बी अ विल। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट है। सी, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन आर डिफरेंट। फर्स्ट वाला क्या है, वेयर देयर इज अ विल, ये विल वर्ड पहले आया है, वे वर्ड बाद में आया है। यहाँ पे वे वर्ड पहले आया है और विल वर्ड जो है वो बाद में आया है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। Yes, ओके, ma'am. विजिबल है ना अभी। देखो, विल फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है उसमें विल पहले आया है, वे बाद में आया है। सेकेंड वाला जो उसमें वे पहले आया है, विल बाद में आया है। तो ये जो हमने टाइप किए सर्च करने के लिए, ये एक्चुअली इसने किया क्या, इसने ये वर्ड्स को एक्सचेंज नहीं किया है। इसने क्या किया है, ये जो हमने यहाँ पे वेयर देयर तक उसने लिया, उसके बाद उसने ये बीच का जो है ना इसको कंसिडर नहीं किया, वे कंसिडर किया। तो ये जो बीच का था ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे वर्ड्स क्या थे, वेयर देयर और वे, और हमने बीच में स्टार लगाया, मतलब बीच में कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या है, वेयर देयर, और फिर ये बीच का उसने नहीं देखा, डायरेक्टली वे। इसी तरह यहाँ पे देखो सेकेंड वाला जो रिजल्ट आया है उसमें कैसा है, वेयर देयर और यहाँ पे वे है, बीच में क्या आया, इज अ। तो बीच में कुछ भी आ सकता है,
ये तो हमने जो सर्च किया, हमने क्या सर्च किया, स्टार डाला, उससे पहले वेयर देयर डाला, उसके आगे वे डाल दिया, तो उसने ऐसे सर्च करके कर दिखाया हम लोगों को। इसके आगे का हम लोग देखते हैं, नीचे देखो, यहाँ पे ढूंढो वेयर देयर है क्या? हाँ है, यहाँ पे हमको दिख गया, तुम लोगों को दिखा? कोई एक जन अनम्यूट करके बताओ। ये वाला जो है थर्ड वाला, ये वाले में देखो, ये वाले में ढूंढो कहाँ पे है, जिसको दिखेगा अनम्यूट करके बताओ। जो नीचे ब्लैक वाली छोटी छोटी लाइन यस है ना, मैम, उसमें दिखा। भी है। Yes, ma'am. यस, कहाँ पे है देखो, इधर यस वेयर मैम, देयर, वेयर देयर और यहाँ पे वे, उसके बीच में कुछ भी है, चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्च करता है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी है, देखो, अगेन वेयर देयर वे, यहाँ पे ये इतना चलेगा, कुछ भी रहेगा चलेगा। अगेन लेट्स सी ओवर हियर, ओके ये देखो थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस आया। वेयर देयर, यहाँ पे इज अ रोड, देयर इज अ, उसके बाद वे। दिख रहा है सबको? स्क्रीन यस अगर मैम। आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो आप पिंच करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, ठीक है? जहां हम दिखा रहे हैं वहां जूम करके देख लो अच्छे से। ये नीचे वाला दिखा रहे हैं अभी हम। ऑलराइट, सो यहाँ पे वेयर आया, ठीक है, यहाँ पे वेयर आया, यहाँ पे देयर आया, उसके बाद यहाँ वे आया। ये देयर और वे के बीच में कुछ भी रह सकता है, क्योंकि हमने देयर और वे के बीच में यहाँ सर्च करते टाइम स्टार डाले हैं। समझ में आया स्टार के लिए क्या यूज होता है, स्टार क्यों यूज होता है, स्टार का क्या काम है यहाँ पे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब तक के जो 6 पॉइंट देखे, इसमें कुछ डाउट है? एनीबडी? नो मैम। नो मैम। Okay. Anybody, if you have doubt, you can ask. All right. So let's revise again. First point क्या था? जल्दी बोलो. यूज टैब्स। Use tabs. Very good. Second point, यूज कोड। use colon. Use quotes. Okay. यूज Third, कोड। use यूज hyphen. हाइपन। हाँ. Fourth, यूज कॉलन। या use colon वाला आप लोगों को बहुत पसंद आया है. सब पहले use colon ही बोलने Colon. लगते हैं. Okay. Fifth, फाइंड अ पेज लिंक Find टू a अनदर page. पेज। yes. Very good. Very good. I'm getting very good answers now. Sixth, यूज एस्टेरिक वाइल्ड कार्ड। Asterisk wildcard. वाइल्ड कार्ड। ओके, तो ये जो पूरे 6 पॉइंट थे, दीज वे फॉर सर्चिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स थे फॉर सर्चिंग, ठीक है? तो इसके ऊपर आप एक छोटा सा ऐसे हेडिंग डाल लो साइड में कि दीज वे द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सर्चिंग। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स किस लिए थे? दिस वे फॉर सर्चिंग, सर्चिंग ट्रिक्स आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है? ये 6 पॉइंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अलग देखने वाले हैं, ठीक है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू विद गूगल? क्या क्या चीजें आप कर सकते हो गूगल के साथ? हम लोग सर्च करते हैं, हमेशा सर्चिंग करते रहते हैं। वी कैन डू, अपार्ट फ्रॉम सर्चिंग, वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आप क्या करो, एक अलग से ऐसे साइड हेडिंग लिखो और उसको अंडरलाइन करो। क्या लिखोगे? गूगल फंक्शंस, गूगल फंक्शंस, ठीक है? डू यू वांट द स्पेलिंग? गूगल की स्पेलिंग तो आपको पता है, प्लीज राइट गूगल, डोंट राइट गॉगल, ठीक है? गूगल फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस, ये हेडिंग लिख के आप अंडरलाइन करो। इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी 7 पॉइंट्स इन दिस। इससे पहले हम लोग जो देखे सर्च के ट्रिक्स, उसके अंदर वी सॉ 6 पॉइंट्स। ओवर हियर इन दिस वी आर गोइंग टू सी 7 पॉइंट्स। ऑलराइट, सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी आर गोइंग टू यूज गूगल टू डू मैथ्स, ठीक है? टू डू मैथ्स, फर्स्ट लिखो टू डू मैथ। किसके अंदर लिखोगे? गूगल फंक्शंस के अंदर। अब आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा टू डू मैथ। सो नाउ लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज गूगल टू डू मैथ्स। डायरेक्टली मैथ्स करने के लिए बोल रहा है वो हम लोगों को गूगल से। What does it mean? It means that you can directly write an equation over there. For example, I'm going to write 8 plus 5 into 5. ठीक है? I wrote this. या ओके, लाइक दिस। देखो, जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमको देखो कैलकुलेटर जो रहता है हमारे मोबाइल में, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है तो स्टार की बटन रहती है उसके अंदर भी, ठीक है? सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने डाले हैं, हम लोग वो एक्स वाला भी डाल के देखेंगे रिजल्ट प्रॉपर आता है कि नहीं। तो 8 plus 5 into 5 क्या है आंसर, जल्दी से बताओ।
Math students, 8 plus 5 into 5. Please unmute and say 65. 65. 2.6. 33. Okay. Yes, okay, 65 and 33. Let's see what is the answer. The answer is 33. 65 किसने बोला? देखो, जब आप कर रहे हो मैथ्स तो ऑब्वियसली खुशी उसके मेरे को अंदर समझा नहीं। हाँ, ओके ओके हैपन. सो व्हाट आर वी डूइंग? तुमने क्या किया? तुमने पहले एडिशन किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया. बट ऐसा नहीं होता है ना मैथ्स में. हम लोग बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं, है ना. व्हाट इज बोर्ड मास? BODMAS. बोर्ड मास का रूल जो है वो अप्लाई होता है. मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यानी पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद आप एडिशन करोगे. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? पहले 5 इंटू 5 करना है. 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 8. तो 25 प्लस 8 जो होता है वो होता है 33. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर 33. तो आप देखो, आपने डायरेक्टली मैथ्स का इक्वेशन डाला गूगल में और आपको वो कैलकुलेट होके मिल गया. ठीक है, इसी तरह चलो हम कोई दूसरा नंबर डालते हैं. नंबर बोलो. Tell me some number, random numbers. We will put some equation again and see. It's like calculator. कोई एक जन नंबर बोलो अनम्यूट करके. 9 minus 6 into 9 10. minus 6 into 5. 10. और ओके, 10 डाल दिया हमने. चलो, क्या आंसर आया देखो? -51. यानी वो प्रॉपर हमको क्या कर रहा है? कैलकुलेट करके दे रहा है. अगेन 9 माइनस 6 इंटू 10 तुम करोगे तो पहले क्या होगा? 6 इंटू 10 होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 60. उसके बाद उसमें से क्या होगा? 9 माइनस 60 होगा, तो आपका आंसर आएगा -51. क्योंकि 9 इज स्मॉलर देन 60 और 60 का जो है वो साइन नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर जो है उसमें नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. Similarly, we can use Google to find some constants also. ठीक है, जिस तरह for example I'm saying speed of light. What is the speed of light? क्या लिखते हैं हम लोग speed of light का वैल्यू? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Very good. 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो I'm just writing speed of light over here. हम इसको सर्च करके देखते हैं. देखो क्या आया? एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन आया. देखो क्या है? 299 एंड इट्स ऑल गिविंग. वो जो 10 रेस टू करके हम लोग लिखते हैं वो नहीं दिया है उसने. डायरेक्टली क्या किया? पूरा होल नंबर दिया है. तो एक्चुअली क्या होता है ये? यहाँ पे आप देखो 8 डिजिट्स आर देयर. काउंट करो कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है ना. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.99 इंटू 10 रेस टू 8. इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं 3 इंटू 10 रेस टू 8. और इसका ये क्या है? यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज हाउ वी राइट द स्पीड ऑफ लाइट, है ना. अब वो गूगल है तो वो बहुत ही प्रिसाइज आंसर दे रहा है आपको. इसीलिए जो है हमारा आंसर और उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आया है. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट आवर आंसर इज रॉन्ग और दैट गूगल इज सेइंग अस रॉन्ग आंसर. वो आंसर भी करेक्ट है. जिस तरह हम पाई की वैल्यू निकालते हैं, चलो अभी यहाँ पे हम पाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14. 22. हाँ, 3.14 नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. तो एक्चुअली वैल्यू क्या रहती है? देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है? टू ओनली 18 डेसिमल प्लेसेस इट इज 3.141. यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे देखो वैल्यू आई है उसकी. ठीक है, सो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ पाई अगेन. तो इस तरह से आप गूगल में जो है जो कॉन्स्टेंट्स है जो डिक्लेयर किए गए हैं उनको आप यूज कर सकते हो. आई मीन यू कैन सर्च देम इन गूगल. सिमिलरली इस तरह से वी आर हैविंग प्लैंक्स कांस्टेंट. फिजिक्स में पढ़े होंगे प्लैंक्स कांस्टेंट रहता है. तो प्लैंक्स कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू रहती है. देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? दिख रहा है? 6.6260700 into 10⁻⁻34. दैट्स द वे इट्स बीइंग कैलकुलेटेड. वो पूरा आपको जो है कैलकुलेट करके वहां पे डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन दैट कैन बी डन इन गूगल. ठीक है, नॉर्मल सर्च के अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं. ठीक है, उसके वी आर बिकॉज वी आर सीइंग हाउ वी कैन मेक आवर सर्च मोर एंड मोर एफिशिएंट.
नेक्स्ट थिंग इज सर्च फॉर मल्टीपल वर्ड्स एट वंस। ये क्या बोल रहा है? सेकेंड वाला लिखो, इसके अंदर सेकेंड रहेगा, सर्च फॉर मल्टीपल वर्ड्स एट वंस। ओके, फर्स्ट लाइन देखो गर्ल्स, डोंट सी द रेस्ट ऑफ द रिजल्ट, just see the first line, search for multiple words at once. So we are going to see how the multiple words can be searched. Multiple search करने का मतलब you can say कि हम लोग multiple words तो डालते ही है. Why are we saying multiple words? Let's see. For example, I put over here cake. ठीक है, केक सर्च किया तो क्या आएगा? बहुत अच्छे अच्छे केक के रेसिपीज आएंगे, इमेजेस आएंगे, केक शॉप कहाँ कहाँ पे है वो दिखा रहा है हमको. देखो केक के इमेजेस आए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर टू थिंग्स एट वंस, केक और यहाँ पे हम डाल रहे और कार. So now what we are going to get? You will get cake result as well as you will get car result. ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियोस जो थे वो सारे क्या थे? कार की शेप में जो केक बना है वो है. बट इफ यू सी दिस फर्स्ट रिजल्ट ओवर हियर, अगेन इट इज ऑडी कार केक, अगेन कार केक दिखा रहा है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? केक भी डाल रहे हैं उसके अंदर और कार भी डाल के रखा है, तो दोनों एक साथ सर्च कर रहा है. लेट्स सी द इमेजेस. इसमें इमेजेस देखते हैं, इमेजेस में भी वैसे ही दिखा रहा है. अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो और लिखा है, ये क्या किया इन लोगों ने? दे सर्च फॉर केक और कार को उसने मिला के ही सर्च किया है अभी भी. ठीक है, सिंगल रिजल्ट डाला है. तो आई एम गोइंग टू पुट डबल कोट ओवर हियर. केक को भी डबल कोट्स में डालेंगे. ठीक है, अलग अलग डालने वाले, पूरे को नहीं डालेंगे. केक जो वर्ड है उसको अलग डालेंगे, यहाँ पे बीच में और लिखेंगे, और यहाँ पे कार को जो है इसको भी डबल कोट्स में डालेंगे. अब देखो कैसा रिजल्ट आता है. लेट्स सी again. Okay, we are getting the same result. Just a minute. Yes. So that, और अभी आप लोगों ने खुद देख लिए. You saw the live demonstration of how you should search. कितना स्ट्रिक्ट जो है उसका, कैपिटल स्मॉल जो है हम डालते हैं, कितनी केस सेंसिटिविटी है देखो उसके अंदर. जब हमने और कैपिटल में डाले तब उसने हमको केक के अलग रिजल्ट्स दिए और कार के अलग रिजल्ट्स दिए. कब से क्या हो रहा था? जब हम केक और कार डाल रहे थे, कोट्स के साथ भी डाल रहे थे, और जो था वो स्मॉल था, तो क्या हो रहा था? जो केक रहता था वही कार के शेप में दिखा रहा था वो हम लोगों को. ये कार के शेप वाले कितने केक्स रहते हैं, क्या क्या रहता है. बट नाउ सी, दिस इज इमेजेस में जो है आपको ठीक है केक दिख रहा है, बट अब यहाँ रिजल्ट में देखो, ये वाला जो है, ये वाला देखो, कार कंपनीज, कार, फाइनली कार के बारे में कुछ आया. अगेन यहाँ पे देखो, मेट्रो कार शेड सेंटर आस महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू स्टॉप वर्क फॉर कंज्यूमर मार्क मेट्रो कार शेड. अगेन ये क्या हो रहा है? कार का रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, तो हमने क्या किए, केक के बारे में भी सर्च कर दिए, कार के बारे में भी सर्च कर दिए. यानी हमको अलग से केक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कार के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप यहाँ ऊपर ही देखो, जो ये 4 केक का फोटो दिख रहा है उसमें सिर्फ फर्स्ट वाला ऐसा है जो कार के शेप में केक है, बाकी तीनों देखो नॉर्मल केक है. ठीक है, तो क्या हुआ था इससे पहले जब हमने केक और कार डाले थे, ओ आर जो था वो अगर स्मॉल था तो क्या हो रहा था? ऐसे केक्स आ रहे थे जो पूरी तरह से कार के ही शेप में थे, सिर्फ वही आ रहा था, स्क्वायर शेप या राउंड शेप का केक नहीं आ रहा था उस वक्त. ठीक है, सो इस तरह से यू कैन सर्च फॉर मेनी थिंग्स. आप मल्टीपल चीजों को एक साथ सर्च कर सकते हो इस तरह. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गोइंग टू सर्च ओवर हियर. देखो चॉकलेट. ठीक है, चॉकलेट डाला, उसके बाद और कैपिटल. ठीक है, ओ आर और जो है वो कैपिटल रहना कंपलसरी है, अच्छे से लिख लो ये. और व्हाइट चॉकलेट. आई एम गोइंग टू टाइप द एंटायर थिंग ओवर हियर एंड लेट्स सर्च. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो इमेजेस में आपको नॉर्मल चॉकलेट का भी फोटो आएगा, व्हाइट चॉकलेट का भी फोटो आएगा. ठीक है, सिर्फ चॉकलेट अगर हम सर्च करते हैं तो क्या आता है देखते हैं. सिर्फ चॉकलेट अगर सर्च करते हैं तो हमारा सर्च रिजल्ट चेंज होता है क्या?
यस, सर्च रिजल्ट चेंज हुआ। ज्यादातर ऐसी चॉकलेट्स आ रही हैं जो ब्राउन कलर की रहती है। देखो, ज्यादातर ऐसी चॉकलेट्स दिखा रहा है वो जो ब्राउन कलर की ही रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको व्हाइट चॉकलेट दिखेगी नहीं या कलरफुल चॉकलेट नहीं दिखेगी, रहेगी, लेकिन बहुत लिमिटेड रहेगा। ज्यादातर मल्टीपल आपको 90% ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो है ब्राउन वाली कलर की चॉकलेट रहती है। अभी हम ये वाला अगेन देखते हैं, और व्हाइट चॉकलेट जब डाले थे तो उसमें देखो व्हाइट चॉकलेट भी दिखा रहा था बीच बीच में, अच्छा खासा दिखा रहा था। 50% जो था नॉर्मल चॉकलेट दिखा रहा था और 50% जो था व्हाइट चॉकलेट दिखा रहा था। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई। ठीक है, आपको फर्क समझा? अगर आप सिर्फ चॉकलेट सर्च करते हो और फिर चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट करके सर्च करते हो तो क्या आता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी हैज एनी डाउट? If you have any doubt, you No, can ma'am. unmute and ask. Okay, thank you. No, Next ma'am. उसके बाद है थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है गूगल का? तो थर्ड वाला लिखो, ग्रेजुअली एड सर्च टर्म्स। सी आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर, ग्रेजुअली एड सर्च टर्म्स। ग्रेजुअली एड सर्च टर्म्स, ये आपका थर्ड वाला फंक्शन रहेगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड फंक्शन। व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे जिस तरह हमने सर्च किए थे, ये थर्ड वाला है। आई होप एवरीवन हैज रिटन इट। आई सर्च फॉर केक, है ना? हम लोगों ने क्या सर्च किया था? केक करके सर्च किया था। तो हमको देखो क्या दिखा रहा था कि कौन से शॉप्स है आसपास और कौन से टाइप्स के केक्स रहते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। इफ आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर केक मटेरियल, तो क्या आएगा? अब फाइनली हमको बताएगा कि कहाँ कहाँ केक मटेरियल मिलता है, हमारे आसपास ही दिखाएगा। वो क्या कर रहा है, जो इससे पहले सर्च किया था ना उसी में से फिल्टर आउट करके दिखा रहा है। उसके बाद केक मटेरियल, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ऑनलाइन, तो अब मुझे जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ पे केक मटेरियल मिलता है वो दिखाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल नाउ, पे अटेंशन टू दिस। Is there some blank space somewhere? There is no blank space. Just a minute. Okay, pay attention. I'm going to scribble on this page now. Just see. पहले जब हमने केक सर्च किए, फॉर एग्जाम्पल उसको 100 रिजल्ट मिला, ठीक है, 100 वेबसाइट उसको मिली। उसके बाद हमने क्या डाले? आई सेड केक मटेरियल। तो वो क्या करेगा, ये जो 100 ऊपर इसको मिला था ना, इसी में से ढूंढेगा कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसमें केक मटेरियल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 70 वेबसाइट ऐसे मिलती है, किसमें से ढूंढेगा वो? ये 100 में से ही ढूंढेगा वो, और बाहर से नहीं ढूंढेगा। जो 100 उसके पास है ऑलरेडी उसी में से वो ढूंढेगा कि ये 100 में से केक मटेरियल किसमें मिल रहा है। उसके बाद आई सेड केक मटेरियल ऑनलाइन, आई सेड केक मटेरियल ऑनलाइन। तो अब वो क्या करेगा, ये जो 70 जो उसको मिला था इसमें से वो ढूंढ के निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से 29 ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें केक मटेरियल ऑनलाइन बता रहा था, तो ये उस तरह से ढूंढेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपको 100 रिजल्ट्स मिले, उसमें से फिल्टर आउट होके 70 मिले, उसमें से फिल्टर आउट होके फाइनली 29 मिले। तो आप इन 100 में से फिल्टरिंग करते जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग very specific results. So this is how you can use gradually adding of the search terms. ये आपको हेल्प करेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली डालते हैं ना केक मटेरियल ऑनलाइन, तो ये हमको कहीं की भी वेबसाइट दे सकता था। ठीक है, लेट्स सी। ओके, केक मटेरियल ऑनलाइन अभी हमने एक बार सर्च कर दिया, इसीलिए हमको वही वाला दोबारा दिखाएगा। अगर आप अपनी हिस्ट्री जो है ब्राउजर की क्लियर करके और करते हो ना, तो आपको वापस से वही ये कैसे दिखाएगा? अभी अमेजोन वगैरह दिखाएगा, फ्लिपकार्ट दिखाएगा, अमेजोन दिखाएगा ना। अमेजोन की वेबसाइट देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती है। तो क्या होता है, डॉट इन जो रहता है, मतलब अगर आप अमेजोन वाला देख रहे हो, यहाँ पे वी आर हैविंग अ रिजल्ट, लेट मी शो यू। यस, ओवर हियर देखो amazon.in लिखा है। कभी कभी हम लोग है ना कुछ चीजें सर्च करते हैं ऑनलाइन और हमको जो रिजल्ट मिलता है उसके अंदर हम लोग सोचते हैं हाँ देखते हैं इसकी प्राइस कितनी है ऑनलाइन। तो उसकी प्राइस ना वहाँ पे डॉलर्स में लिख के आती है, उसकी प्राइस वहाँ पे रुपीज में लिख के नहीं आती है, उसकी प्राइस वहाँ पे डॉलर्स में लिख के आती है। वो क्यों होता है? अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट मिल रही है ना, तो आप ऊपर है ना उसका ये देखो, जो ये हमारा सर्च बार ये जो यूआरएल रहता है ना, वो एक बार चेक करो। ये जो www.amazon.in दिख रहा है ना, उसके अंदर लिखा रहेगा amazon.us।
या फिर यूके, इस तरह से लिखा रहेगा, मतलब वो कोई दूसरी कंट्री का रहेगा। तो आपको कहाँ का चाहिए? आपको इंडिया का ही चाहिए, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, आपको इंडिया का ही चाहिए। वो लोग भी रेडी रहेंगे शिपिंग करने के लिए, लेकिन फिर वो लोग उतना कॉस्ट लेंगे। दूसरी कंट्री से आप कुछ चीज मंगा रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर सम कॉस्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर amazon.in वाला ही देख के आप जो है सर्च रिजल्ट लो। तो अगर हम पहले से सर्च करते ना केक मटेरियल ऑनलाइन, तो हमको इस तरह से बहुत सारा दिखाता, इंटरनेशनल मटेरियल्स भी दिखाता। बट अभी हम लोगों ने एक बार सर्च कर लिए तो वो गूगल की हिस्ट्री में चला गया है, इसीलिए वो हमको सिर्फ उसी से दिखा रहा है। नाउ नेक्स्ट जो है, जो फोर्थ ट्रिक है हमारा, वो है सर्चिंग फॉर यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वन यू हैव टू राइट यूजिंग कीवर्ड्स। यूजिंग कीवर्ड्स, दिस इज, ये ऊपर वाला जो है सिर्फ आप वो लिखोगे, फर्स्ट लाइन जो है यूजिंग कीवर्ड्स, ओनली राइट दैट। Okay, this is the fourth point. Tell me what was the first point? Google functions का first point क्या था? Do to math. Maths. Yes. Second point? Search for Search multiple for words multiple at At once. once. Okay. Third point? Gradually Gradually add add such such terms. terms. Very good. Fourth? using keywords. Using keywords. Yes, using keywords. Let's see what are the keywords. कौन से ऐसे keywords है जो गूगल को अच्छे से समझ में आते हैं? ठीक है, so keywords means ऐसे words हैं. Google is not a human. It is obviously a computer. It is an artificially intelligent machine. वो जो है human language नहीं समझ सकता. अगर आपने कभी गूगल असिस्टेंट यूज किए हो या फिर गूगल में वॉइस सर्च किए हो, अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं रहेगी ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो सकता है घर में किसी और को समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप वो गूगल आपको नहीं समझ सकता, बिकॉज इट वांट्स ऑल क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गूगल को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सर्च मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, मेडिकल स्टोर्स नियर मी, नियर मी। ये जो नियर मी हमने अभी लिखे है ये एग्जाम्पल है, इसको नोट डाउन कर लो, नियर मी। तो आई सर्च मेडिकल स्टोर्स नियर मी, तो ये क्या करेगा, हमारे आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर्स है वो हमको शो करेगा। ठीक है, आई थिंक दिस यू मस्ट हैव सीन इन एड्स ऑल्सो। ठीक है, एड्स में दिखाता है ये। तो आपको मेडिकल स्टोर्स जो है वो दिखाएगा, आपके आसपास कौन कौन से मेडिकल स्टोर्स हैं, दैट इट विल शो। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स भी सर्च कर सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, सो नियर मी कीवर्ड अगर आप डाल के कुछ सर्च करते हो तो आपको प्रॉपरली दिखाएगा कि आपके आसपास वो पर्टिकुलर चीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब दूसरी चीज एक और यहाँ पे, कुछ सर्चिंग टाइम सम पीपल वोंट अंडरस्टैंड, तो कुछ लोग ऐसे डालेंगे वेयर कैन आई फाइंड मेडिकल स्टोर, ऐसे। अगर आप ये डालोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरह उससे आना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेम रिजल्ट तो आया है, लेकिन आप पहले अगर हम लोग डालते हैं, इसमें देखो ऑनलाइन ऑनलाइन सब दिखा रहा है। ठीक है, वो जो है स्टार्टिंग में वो तो मैप दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो, आप देखो जस्ट डायल, ये वो, ये वाला रिजल्ट थोड़ा अलग है जब हमने सिर्फ नियर मी करके दिया था, और जब हमने वेयर कैन आई फाइंड डाला तो देखो यहाँ पे नीचे का ध्यान दो, ये सब रिजल्ट अलग है। ये ऊपर का जो कंसेप्ट है ये पूरा पूरी तरह से क्या कर रहा है वो, मैप्स यूज करके, गूगल का जो मैप्स का कंसेप्ट है वो यूज करके हमको रिजल्ट दिखा रहा है, इसीलिए प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। सो गूगल काफी इम्प्रूव हुआ है, बट नॉर्मली अगर आपको बहुत ही एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए तो आपको इस तरह से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। नाउ राइट द फिफ्थ वन, द फिफ्थ फंक्शन, write the fifth function, point number 5, Google search shortcuts. Google search shortcuts. Please write Google, don't write Goggle. ठीक है, Google search shortcuts, this one. Okay, so ये जो था रिजल्ट है, फाइन। तो हम लोग, आपका जो पॉइंट है वो ये रहेगा, so just write this and then we will do the example. Now, what are the shortcuts that you can use? If somebody knows, tell me. अगर हमको एक particular place का weather निकालना है तो हम क्या टाइप करेंगे? वेदर का पता करना है कि आज ये जगह पे जो है वेदर कैसा है, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे?
वेदर फोरकास्टिंग। ओके, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, हम देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग टाइप करके। ठीक है, वेदर फोरकास्ट। ओके, यहाँ पे इसने ऑलरेडी जो है लोकेशन ले लिया। अदरवाइज लोकेशन अगर नहीं लिया रहेगा तो व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट प्रॉपर दिस थिंग। आपको फॉर एग्जांपल अगर हमको भिवंडी का नहीं देखना है, मुझे भिवंडी का नहीं देखना था, ठीक है, मुझे देखना है मुंबई का वेदर फोरकास्ट क्या है। बट जब मैंने वेदर फोरकास्ट डाला तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भिवंडी का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नाउ सी वेदर ऑफ मुंबई, तो प्रॉपरली मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा वेदर मुंबई। तो अब ये मुझे बताएगा मुंबई में वेदर कैसा है। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखो मुंबई लिखा हुआ है। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, मुंबई लिखा हुआ है। तो अगर हम जो है सिर्फ वेदर फोरकास्ट डालेंगे तो वो सिर्फ पहले से जो हम सर्च कर रहे हैं, पहले से हमारा मोबाइल का जो लोकेशन है वो उधर ही का वेदर आपको दिखाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस का देखना है तो फिर आपको उस जगह का नाम डालना चाहिए। या तो फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे पिन कोड डालो। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू पुट पिन कोड 421302। ये कहाँ का पिन कोड है? भिवंडी का। भिवंडी का है। चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भिवंडी का वेदर दिखाता है क्या। देखो यहाँ पे कहाँ का वेदर दिखा रहा है, ये कहीं और का वेदर दिखा रहा है, भिवंडी का नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भिवंडी का पिन कोड जो है ऑफिशियली गूगल ने चेंज कर दिया है। मतलब गूगल को हम लोगों को स्टार्टिंग अभी बीच में देखो 1-2 साल पहले बोला जा रहा था कि भिवंडी का पिन कोड चेंज होने वाला है, 302 नहीं रहेगा, 308 रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए जब हम 30 ये चीज जो है गूगल में सेव कर ली गई है। ठीक है, गूगल के हेडक्वार्टर्स में सेव कर ली गई है। उनको ये नहीं पता है कि हम लोग अभी भी 302 ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई ओवर हियर नाउ लेट्स सी, हम लोग 308 डाल के देखते हैं। अभी देखो आया क्या? सही आया, अभी भिवंडी का आया है ना। तो इस यस तरह से आप मैम। किसी भी जगह का जिप कोड डाल के देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखे थे। हम लोगों ने जब सिलेबस वर्ड टाइप किए थे, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था आपका? वेदर, और फिर उसके आगे आप नंबर दोगे या तो फिर जगह का नाम दोगे, वेदर मुंबई, या तो फिर वेदर 421302 या 308 जो भी है जिप कोड। वेदर की स्पेलिंग सही रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने सिलेबस टाइप किए थे तो हमको यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दिया था, इस तरीके से उसने बताया था। लेट्स सी कोई और वर्ड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्स। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग कोर्स, सॉरी, यस कोर्स। यहाँ पे अभी हम सर्च करके देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, कोर्स भी अगेन ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसीलिए इसका भी जो है डेफिनेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम डाल रहे हैं लैपटॉप। लेट्स सी, लैपटॉप डाला तो देखो डायरेक्टली ऐड आया। लैपटॉप कहाँ कहाँ मिलता है भिवंडी में, मुझे ये वो बता रहा है। लैपटॉप के प्राइसेस क्या है। पर मैं क्या चाह रही थी, मैं उससे पूछना चाह रही थी कि लैपटॉप का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैपटॉप। तो देखो अब तुमको प्रॉपरली लैपटॉप का डेफिनेशन मिलेगा। पहले नहीं मिल रहा था, क्यों? कोई सर्च करता है क्या जल्दी लैपटॉप का डेफिनेशन? नहीं, वी ऑल नो व्हाट लैपटॉप इज, इट इज नॉट वेरी कॉमन, तो इसीलिए ऐसा नहीं आया था। या तो फिर दूसरा तरीका ये है, आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टर्म आप ये लिख लो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। क्या लिखोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, और फिर इसके आगे आपकी मर्जी का जो भी वर्ड है वो आएगा। तो ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ये क्या है? की वर्ड है जो गूगल को समझता है। यहाँ तक सबने देखे है ना। तो फर्स्ट क्या था, आप क्या सर्च करोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ऐसे करके लिखोगे। उसके आगे आपका जो भी वर्ड है आप वो डालो, या तो फिर आप लिखो डिफाइन और उसके आगे आपका जो भी वर्ड है आप वो डालो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू नाउ सर्च डिफाइन प्लांट। तो देखते हैं क्या आता है। देखो डेफिनेशन आया प्रॉपर पूरा, प्लांट क्या होता है, मल्टीपल डेफिनेशन आते हैं। अगर हम पहले से डायरेक्टली प्लांट डालते हैं ना तो उसका डेफिनेशन नहीं आता। लेट्स सी समथिंग डिफरेंट, जैसे लीफ। ठीक है, सिर्फ लीफ डालते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे। सी डेफिनेशन नहीं आया। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेशन नहीं आया, देखो लीफ का डेफिनेशन नहीं आया, बट आई वांट टू सी द डेफिनेशन। तो आई विल डायरेक्टली राइट ओवर हियर डिफाइन, और फिर उसके बाद
सर्च कर देंगे तो क्या आएगा, लीफ का प्रॉपर डेफिनेशन आएगा. इज इट विजिबल? यस मैम. ओके, आवाज आ रही है ना सबको? उसके अलावा वन मोर थिंग दैट वी कैन डू, टाइम. वी कैन सी द टाइम. ठीक है, टाइम सर्च करके देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आता है. तो डायरेक्टली टाइम डाल के देखेंगे तो इट इज गोइंग टू शो मी भिवंडी टाइम. व्हाई? बिकॉज आई एम ऑलवेज यूजिंग माय गूगल फ्रॉम हियर. तो वो जो है लोकेशन कैप्चर कर लेता है. हम लोग मैप्स जब चालू करते हैं ना तो हमारा लोकेशन रिकॉर्ड हो जाता है. तो उसको पता है कि हम भिवंडी में बैठे हैं, इसीलिए जब हम टाइम डालेंगे तो वो डायरेक्टली हमको भिवंडी का ही टाइम दिखाएगा. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू सी टाइम ऑफ फॉर एग्जांपल यूके. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द टाइम इन यूके. देखो यूके में 6:04, वो भी सुबह के 6 बजे हुए. ठीक है. सो दिस इज हाउ द टाइम डिफर्स एंड दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली सर्च. टाइम जो है वो भी एक कीवर्ड है. तो कौन कौन से कीवर्ड्स देखे अभी हमने इसके अंदर? फर्स्ट वाला क्या था? कीवर्ड कौन कौन से देखे हम लोगों ने? फर्स्ट वाला क्या था? वेदर. Near me. वेदर. या नियर मी भी एक था. ठीक है. अभी ये फिफ्थ वाले में कौन कौन सा देखे? वेदर. फिर उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, ये डाल के आप कोई भी वर्ड डाल सकते हो, या तो फिर डिफाइन करके कोई भी वर्ड डालो, या फिर अगर आपको टाइम देखना है तो आप टाइम TIME लिख के कुछ भी जगह का नाम डालो तो आपको प्रॉपर टाइम दिखाएगा. ठीक है. दिस वॉज द फिफ्थ गूगल फंक्शन. व्हाट वाज द फर्स्ट वन? गूगल का फर्स्ट फंक्शन क्या था? To do math. यस. सेकेंड वन? Search for my Search for यस. Gradually. ओके. थर्ड वन? gradually search. ग्रेजुअली ऐड. वेरी. Fourth one is using फोर्थ वाला क्या था? keywords. Yes. Keywords. ओके. फिफ्थ वन जो अभी Google shortcut. yes, short. Now we are going to see the sixth one. Sixth one जो था वो again wait just a minute. Yeah. Sixth one is going to be money and unit conversions. Okay, this is the last one. We are going to have 6 in this, not 7. I think I told you कि इसमें 7 रहने वाला है. इसमें 7 नहीं रहेगा. इसमें money and unit conversions करेंगे हम लोग, वो रहेगा 6. Okay, so let's see money and unit conversions. This is the sixth one. Write it down. Money and unit conversions. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, ma'am. Thank you. Money Yes, and ma'am. unit conversions. So I hope you have written the sixth one. Let's see. तो इसके अंदर अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सर्च इंचेस टू सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, कौन सा इनपुट है और कौन सा तुमको कन्वर्ट करके आंसर चाहिए. वो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तुम्हारा इंचेस में फॉर एग्जाम्पल, और तुमको नहीं पता कितना इंच है, यू डोंट नो. सो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट यू कैन हैव अ रफ आइडिया ऑफ वॉट एवर द साइज इज. ठीक है. तो इंचेस और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है, तो वो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा. व्हाट इज द रिलेशन? 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. सिर्फ इतना देख के बस हमारा काम हो गया क्या? नो, वी कैन डू वन मोर थिंग ओवर हियर. ये जो बॉक्स है इंच का, या फिर ये जो बॉक्स है सेंटीमीटर का, हम इन दोनों में ये वैल्यूज को चेंज करके उसका करस्पॉन्डिंग आंसर दे सकते हैं. अगर आप इंच जो है वो चेंज करते हो, इंच की कुछ और वैल्यू डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली बताएगा कि 2 इंच कितना सेंटीमीटर होता है. ठीक है. लेट्स ट्राई एंड सी. यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट 2. ठीक है. तो देखो सेंटीमीटर का आंसर चेंज हुआ. अगर मैं 20 डालूंगी, सेंटीमीटर का बॉक्स आप देखते जाओ, यहाँ पे देखो दिस बॉक्स आंसर इज चेंजिंग. 25 इफ आई पुट, see again that answer is changing. 29 inches
ओके 29 इंचेस फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग। तो अगेन सेंटीमीटर जो है वो ये भी बता रहा है कि 1 इंच कितना सेंटीमीटर है, और वो ये भी बता रहा है कि अगर हम डायरेक्टली, मुझे ऐसा है कि हाँ 2.54 जो है, अभी मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, डायरेक्टली आई कैन पुट द इनपुट ओवर हियर और उसको कन्वर्ट करके उसका आंसर ये मुझे यहाँ पे दे देगा। इस तरीके से वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारे पैरामीटर्स है, देखो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी। फॉर एग्जांपल एरिया, डेटा ट्रांसफर रेट, डिजिटल स्टोरेज, इन सारी चीजों के पैरामीटर्स हम कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, आई एम टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, केल्विन भी रहता है एक, ठीक है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहीट अगर मुझे करना है तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, 0 डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट। इस तरह से अगर मुझे 5 डिग्री का करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 9/5 प्लस 32। इसका आंसर क्या आएगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 41, है ना, 41 डिग्री फ़ारेनहीट, 5 डिग्री सेल्सियस का कर रहे थे हम। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इतना कैलकुलेट करने से अच्छा यहाँ पे 5 डालते हैं। तो वी गॉट, ओके सॉरी इट्स 41, 41 आएगा, 32 प्लस 9, या करेक्ट इट्स 41। सो वी आर गेटिंग 41 डिग्री फ़ारेनहीट। ऑलराइट, 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 41 डिग्री फ़ारेनहीट। उसका पूरा वर्किंग भी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो इसी तरह से वी आर हैविंग सो मेनी पैरामीटर्स ओवर हियर। देखो वॉल्यूम, लेंथ, फ्यूल इकोनॉमी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डिजिटल स्टोरेज। लेट्स सी डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट देखते हैं क्या दिखा रहा है। अगर हम बोल रहे कि 1 बिट पर सेकेंड जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है, तो व्हाट विल हैपन, डिवाइड द डेटा ट्रांसफर रेट, यहाँ पे क्या दे रहा है, बाय वैल्यू ऑफ 1000। यानी इफ यू आर सेइंग 1 बिट पर सेकेंड, अभी अगर हम यहाँ पे डालते हैं 1 KB पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 1 KB पर सेकेंड, तो इसका मतलब 1 KB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रहा है, 1000 बिट्स। ओके, similarly instead of data transfer rate, let's see digital storage. So digital storage में भी we are having bytes, kilobytes। देखो there are so many different parameters, ठीक है। बिट से स्टार्ट होता है, किलो बाइट, कीबी बाइट, मेगा, मेबी, गीगा, गीबी एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो नॉर्मली हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, हम लोग इन नॉर्मल सबसे ज्यादा यूज में बिट रहता है, फिर किलो बिट रहता है, then we have megabit, then we have gigabit and then we have terabit। तो कैसे रहता है, इसको बी करके लिखते हैं, किलो बिट को के बी लिखते हैं, फिर उसके बाद मेगाबिट को एम बी करके लिखते हैं, देन गीगाबिट को जीबी लिखते ये भी हैं और टेराबिट को टीबी करके लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हार्ड डिस्क वगैरह यूज होती है उसमें टीबी करके ही दिया हुआ रहता है। आजकल जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क रहती है, यानी 1 TB प्रॉपर स्टोरेज रहता है। दोबारा से देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, हम करेंसी देखने जा रहे हैं। तो उस वो लिस्ट अगर आप देखो, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के जो है कन्वर्जन थे, लेकिन उसमें करेंसी नहीं था। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सी हाउ मच इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर में क्या जो है कन्वर्जन होता है। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करेंगे, इंडियन रुपीस टू यूएस डॉलर। तो उससे हमको क्या मिलेगा, 1 इंडियन रुपी, देखो यहाँ पे बॉक्स में दे रहा है 1 इंडियन रुपी ग्राफ के नीचे, ठीक है। 1 यहाँ पे बॉक्स में दिया है, इसके बाजू में लिखा है इंडियन रुपी। यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर हैविंग इंडियन रुपी। अब यहाँ पे बता रहे 0.013 यूएस डॉलर, तो हम इसको 1 करके देखते हैं। ऊपर वाले बॉक्स की वैल्यू चेंज होगी, देखो। तो ये क्या बता रहे, 1 US डॉलर जो है 74.67 इंडियन रुपीज रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस वाज द सेकेंड बॉक्स, अगर मैं ये फर्स्ट बॉक्स में ये चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस टू सऊदी रियाल, ठीक है। तो जो पहला बॉक्स था ये वाला, इसकी वैल्यू फिक्स है, जो इससे पहले वाले रिजल्ट में आई थी, क्या थी, 74.67। तो उसने उसी को लेकर के क्या बताया कि यूएस डॉलर में कितना होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम 1 डाल के देखते हैं। 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3.75 सऊदी रियाल। इसी तरह हम ये यूके का जो करेंसी है, दैट इज यूरो, यूरोप में जो यूज होता है वो, और यूएस डॉलर की वैल्यू देखते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे अभी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। ओके,
सो यूरो Yes, के ma'am. अंदर देखते हैं अगेन, देखो 3.75 यूरो इज इक्वल्स टू 4.37, इसको 1 करके देखते हैं क्या बता रहे हैं। 1 यूरो जो है 1.17 यूएस डॉलर रहता है। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, जल्दी से बताओ गूगल फंक्शंस के कौन से 6 पॉइंट्स हैं। To do फर्स्ट पॉइंट maths, To do math, math, to do मैथ, सेकेंड पॉइंट search search for for or multiple multiple, यस, थर्ड पॉइंट gradually add search gradually add terms, gradually add search terms, fourth point using keywords, यूजिंग कीवर्ड। keyword, और कीवर्ड्स, हाँ कीवर्ड कौन Google थे उसके अंदर, नियर बाय वाला देखे थे है ना। उसके बाद फिफ्थ वाला Google search search shortcuts, शॉर्टकट्स, उसमें कौन कौन से वर्ड्स देखे थे, वेदर, weather, व्हाट इज द define, डेफिनेशन ऑफ time, डिफाइन और टाइम। ask, फिर सिक्स वाला क्या था, Money and unit money or unit conversion. हाँ, conversion. and conversion, unit conversions, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम फन। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ ट्रिक्स देखते हैं गूगल में कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं। सब लोग एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी सम ट्रिक्स। अभी यहाँ पे हम टाइप करने जा रहे हैं, ये नोट डाउन करो। अब नीचे तुम लिख लो फन ट्रिक्स और उसको अंडरलाइन कर लो। उसके अंदर फर्स्ट वाला रहेगा गूगल अंडर वाटर। गूगल लिखो, हाँ गॉगल नहीं लिखोगे, गूगल अंडर वाटर। अंडर वाटर में स्पेस नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग इसको सर्च करके क्या आता है यहाँ पे, गूगल अंडर वाटर। इसमें कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली मोबाइल साइट पे शायद नहीं चलेंगे, तो आपको डेस्कटॉप पे अच्छे से देखने को मिलेगा। ओके, ये आ गया यहाँ पे। देखो क्या हुआ, गूगल जो है वो पानी के अंदर है। हाउ इज इट लुकिंग, बहुत सारे फिशेस जा रहे हैं। वो बटन्स देखो कहाँ कहाँ घूम रही है उसकी। ये देखो हमने इसको टच किया तो ये जो पानी है ये भी मूव हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है सर्च बार में, सर्च बार दिख रहा है, देखो उसमें क्या लिखा है, वो भी मूव हो रहा है। उसमें लिखा है मोर फिश प्लीज। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सर्च बटन। देखो और फिशेस आ गए, दिखा दिखा सबको। उसके Yes, बाद ma'am. Can अगेन you देखो repeat, सर्च please? बार जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, वो पानी में एकदम अंदर चला गया है। वापस से हम सर्च पे क्लिक करते हैं, देखो और फिश आ रही है। इस तरह से हम जितनी बार सर्च पे क्लिक करते जाएंगे ना उतनी फिशेस ऊपर से आते जाएंगे। देखो गिरते जा रहा है वो, और भी जाम हो गया है पूरी तरह से। उसके अंदर इतने सारे फिशेस आ गए ना कि वो पूरी तरह जाम हो गया। वापस से देखो सर्च पे क्लिक किया, फिर से आके फंस गए उसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज वन फन थिंग दैट यू कैन ट्राई। लेट्स गो बैक टू गूगल। दिस वाज द फर्स्ट फन ट्रिक। क्या था, गूगल अंडर वाटर। सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। लेट्स सी द सेकेंड वन, स्पेंड बिल गेट्स मनी। ठीक है, ये बिल गेट्स पता है कौन है, बिल गेट्स कौन है, founder of computer, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। World richest man. क्या, Microsoft, ओके, सो लेट्स सी इसके अंदर क्या आता है। हम लोगों ने जो सर्च किया उसमें देखते हैं क्या आता है। ठीक है, स्पेंड बिल गेट्स मनी हम लोग टाइप करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है ना नील डॉट फन, यही वाला क्लिक करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट अ लिस्ट। आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ये जो पहला वाला है ये एक्चुअल पैसा है जो बिल गेट्स के पास है। ठीक है, ही इज हैविंग दिस मच मनी। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे नीचे एक बहुत बड़ा सा लिस्ट दिया हुआ है। देखो बर्गर है तुम्हारे पास, ये फ्लिप फ्लॉप्स है, कोका कोला का पैक है, मूवी का टिकट है, सबके नीचे देखो प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एवरीथिंग। जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, देखो ये जो ऊपर कितना अमाउंट था ना, ये देखो ये ऊपर का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, जस्ट सी दिस, दिस इज अ वेरी फन ट्रिक। ओके, टिकट का ले लिया, बुक खरीद लिया। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे वैसे चीजों का प्राइस जो है वो बड़ी बड़ी चीजें आती जाएंगी, उनका प्राइस बढ़ते जाएगा। एक ड्रोन लिया, एक लेना जरूरी नहीं है, आई एम टेकिंग 2-3 साइकिल्स। ओके, इनफैक्ट आई हैव टेकन 16 साइकिल्स। ठीक है, लेते जा रहे। लेट्स सी नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय सम हॉर्सेस। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। अरे वाह, डायमंड की रिंग भी है यहाँ पे, चलो ये भी लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ फन गेम। Formula 1 कार, वाह रेसिंग कार है, ये भी लेते जा रहे हैं। देखिए आई एम टेकिंग, एंड उसका पैसा तो देखो कम ही नहीं हो रहा है, इतना पैसा है उसके पास। हेलीकॉप्टर भी है उसके पास। वी आर हैविंग सम मैंशंस आल्सो, ही इज गोइंग टू मेक अ मूवी आल्सो। मूवी भी आप ले सकते हो। हम जैसे जैसे बाय बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होते जाएगा। अब अगर इसके बाजू में लेफ्ट साइड पे जो सेल बटन है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो देखो अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है,
There is an aeroplane also. I can buy an aeroplane also with his money. He is having too much money. ठीक है. नेक्स्ट स्काईस्क्रेपर, क्रूज शिप. नेक्स्ट एनबीए की टीम है, बास्केटबॉल की टीम, जैसे हमारे आईपीएल की पूरी क्रिकेट की टीम रहती है ना, तो एक एक सेलिब्रिटी ने बाय करके रखा है, जैसे केकेआर को शाहरुख खान में ने बाय करके रखा है, उस तरह से हम लोग है ना इसकी एनबीए की टीम्स खरीद रहे हैं। तो देखो इसके पास इतना पैसा है ना कि इसका खत्म भी नहीं हो रहा है पैसा। सो नेक्स्ट, अब हमारे पास एक रिसिप्ट आया। अब यहाँ पे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, दिस वॉज दिस जस्ट फॉर फन, ओके, अंडरस्टूड दिस। ये भी एक फन कंसेप्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, बस ऐसे ही फन के लिए दिया हुआ है कि उसका पैसा देखो कितना है और आप इसको जो है इतनी सारी चीजें जो है वो खरीद सकता है, फिर भी उसका पैसा कम नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड दिस, दिस वॉज अनदर ट्रिक। अब हम Yes, लोग ma'am. नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक एक है, आप यहाँ पे टाइप करोगे नील फन प्रोग्रेस, ठीक है, राइट दिस डाउन, नील फन प्रोग्रेस, ठीक है, और हम इसको सर्च पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ इसमें भी जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, जो पहला वाला आया है ना, हम वही वाला लेंगे। सो लेट्स सी इसमें क्या बता रहा है। देखो, look at what it is showing. Next minute, how many seconds are left? 10, 9, 8। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा नेक्स्ट मिनट कब आने वाला है वो बता रहा है। फिर नेक्स्ट आवर 12 बजने में, नेक्स्ट आवर कौन सा है, 12 बजने वाला है, 12 बजने में 6 मिनट बाकी है। देखो वो सेकेंड्स जो थे ऊपर के देखो खत्म हुए, वो ग्रीन लाइन चलते चलते पीछे चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, अभी डे चेंज होने में कितना टाइम बचा है, 13 आवर्स आर लेफ्ट। अभी 11 करके जो है वो टाइम चल रहा है ना, अभी अगर 12 बज जाएंगे ना तो यहाँ पे 12 आवर्स लेफ्ट लिखे आएगा। जस्ट सी क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर कब आने वाला है, 56 डेज आर लेफ्ट टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी कब आ रहा है, नेक्स्ट सेंट पैट्रिक्स डे, नेक्स्ट ईस्टर, नेक्स्ट मदर्स डे, नेक्स्ट फादर्स डे, नेक्स्ट हैलोवीन। नेक्स्ट हैलोवीन इज ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर, क्योंकि अभी 5 दिन ही हुआ है हैलोवीन को जाए। नेक्स्ट क्रिसमस, क्रिसमस कब रहता है, क्रिसमस इज नॉर्मली ऑन 25th ऑफ दिसंबर। तो आज क्या है, 4th ऑफ नवंबर है, तो 25th दिसंबर आने में 50 डेज बचे, यानी जैसे ही रात को 25th दिसंबर लगेगा वो 50 डेज पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यू मून कब आने वाला है, नेक्स्ट वैक्सिंग क्रेसेंट, क्वार्टर मून, नेक्स्ट वैक्सिंग गिब्बस। ये सब पूरा बता रहा है कि कब कब जो है वो मून के डिफरेंट फेजेस है, तो वो कब आने वाला है, इट इज शोइंग दैट। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट डिकेड कब आएगा, आफ्टर 10 ईयर्स। वाई आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि अभी 2020 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2020 चल रहा है, तो 2030 जो रहेगा वो आपका नेक्स्ट डिकेड रहेगा। 2030 कब आने वाला है, 10 साल के बाद। नेक्स्ट सेंचुरी, कितने ईयर्स बचे ये सेंचुरी कंप्लीट होने में, 80 ईयर्स आर लेफ्ट। 2020 चल रहा है ना, तो 2100 जो ईयर होता है वो आने में, अगली सदी कब आएगी, 80 साल के बाद आने वाली है। उस तरह नेक्स्ट मिलेनियम। फिर हैलिस कॉमेट, हैलिस कॉमेट कब आता है, हैलिस कॉमेट अगर आपने पढ़े हो, हैलिस कॉमेट जो है ना ये 187 ईयर्स में एक बार आता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है तो देख लो, क्योंकि ये 187 ईयर्स तो कोई जीने वाला नहीं है कि दोबारा हैलिस कॉमेट आएगा, तो आप देखोगे। एंड ये लास्ट टाइम शायद 1967 में आया था, तो आई डोंट थिंक अपनी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हैलिस कॉमेट जो है वो 40 ईयर्स के बाद आ रहा है, ऐसा ये बता रहा है। फिर चेरनोबिल इज फुल्ली सेफ अगेन। ये जो चेरनोबिल है ये एक कंट्री का नाम है जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर मतलब वहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव चीजें हैं, रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वहाँ के एटमॉस्फेयर में। तो उस वो जगह जो है ना वो सेफ बिल्कुल नहीं है रहने के लिए। तो इट विल टेक 180 years फॉर दैट pollution and that radioactivity to get over, so that people can go and start living in that city again, ठीक है। सो इस तरीके से देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे। इट इज जस्ट फॉर फन। मिल्की वे कोलाइड विद एंड्रोमेडा। मिल्की वे क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है। एंड्रोमेडा भी जो है दूसरी एक गैलेक्सी है, उसका नाम है। सन कब डाइक होगा, तो अगेन 5 बिलियन ईयर्स है। इस तरह से दे हैव जस्ट गिवन, ये फन के लिए ये पेज बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद अब एक बहुत ही अच्छी चीज देखेंगे हम लोग, लेट्स सी। नेक्स्ट ट्रिक है दैट इज क्विक ड्रॉ, सॉरी it is not shock draw, it is quick draw with Google. Again, don't write goggle, write Google over there, ठीक है। And I'm going to search. Is the screen visible to everyone?
स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, आई होप यू आर हैविंग फन विद दिस पार्ट नाउ। इसमें भी जो फर्स्ट वाला है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी दिस। नाउ सी ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये हमको बोल रहा है कि आपको कुछ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे ये हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स बताएंगे कि आप ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, तो वी विल ड्रॉ दैट, ठीक है। यहाँ पे नीचे येलो कलर का जो बॉक्स है, लेट्स ड्रॉ, लेट्स क्लिक ओवर देयर। सी ड्रॉ नोज अंडर 20 सेकेंड्स। तो देखते हैं हम लोग बना सकते हैं या नहीं। नोज कैसी होती है? ऐसे रहती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आया, आई नो इट्स अ नोज, वहां पे लिख के आया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ड्रॉ स्क्रू ड्राइवर इन अंडर 20 सेकेंड्स। तो स्क्रू ड्राइवर कैसा रहता है? लेट्स सी, हम लोग ट्राई करते हैं बनता है क्या। ओके, इफ यू सी एकदम नीचे देखो, इन द लास्ट इफ यू सी, नीचे पेज के नीचे लाइन जो है वो आ रही है कि वो है ना डिटेक्ट कर रहा है कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हैट। नाउ एज आई ड्रॉ द हैट, ऑल ऑफ यू जस्ट सी द लास्ट लाइन। वो है ना उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बीच में से ही स्टार्ट कर देगा बोलना, ठीक है। सो सी आई एम ड्रॉइंग अ हैट। ओके ओके, ये हैट जो है सही से नहीं बनी। ओके, सो इट इज सेइंग ही डज नॉट, द गूगल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने हैट बनाया, तो वो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट उसके बाद फ्लोर लैम्प। सो लेट्स सी हाउ डज द फ्लोर लैम्प लुक। बना के देखते हैं। ये जो है पूरा हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। देखो नीचे आया, ओ आई नो इट्स अ फ्लोर लैम्प। तो दिस इज ऑल्सो वन फन गेम दैट यू कैन डू। ड्रॉ अ कैलेंडर। लेट्स सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैलेंडर। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। Let's see, there is supposed to be 7 rows and columns. ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दे couldn't guess it, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक गेम है जो आप खेल सकते हो। अगेन क्या डालोगे? क्विक ड्रॉ विथ गूगल, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I hope you understood. Now, let's see what we are going to do in the task for this day. ठीक है, आज का जो टास्क है वो आपका क्या रहेगा? This is going to be your task. ये स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, ma'am. ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? So this is the task that you are going to do. You can take a screenshot. सबसे पहले हमारा आज का सेशन का नाम क्या था? गूगल टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड नंबर मैम एक्सप्लेन्ड इट टू यू। सो नेक्स्ट आपका रहेगा ब्रीफ हिस्ट्री। देखो यहाँ पे ये चीज जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। गूगल किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाय अ कंपनी कॉल्ड गूगल LLC, ठीक है। एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। गूगल फाउंड किसने किया था? देखो दो स्टूडेंट्स थे, कहाँ के? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन दोनों का नाम दिया है सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज। इन दोनों का नाम दिया हुआ है। दी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गूगल को डेवलप किया था। गूगल को लॉन्च कब किया गया था? 1996 में, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल हुआ था 2004 में, ठीक है। 1996 में इन लोगों ने इसको बना के फिनिश कर दिया था, सबको दिखाया था कि हाँ देखो बहुत अच्छा है, और अपने फ्रेंड्स को बताया था देखो ऐसे ऐसे यूज करना है। लेकिन पूरे वर्ल्ड को फ्रीली गूगल यूज करने की परमिशन कब दी गई थी? 2004 में, ओके। नेक्स्ट उसके बाद गूगल नेट सर्फिंग। सो वी आर हैविंग 2 थिंग्स ओवर हियर, जिसमें हम लोगों ने ये वाला देखे। फर्स्ट वाला आप लोग ने क्या लिखे हो? गूगल के टिप्स है फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, राइट। सो फर्स्ट वाला क्या है? यूज द टैब। देर आर मल्टीपल टैब्स अवेलेबल। अगर हमको सिर्फ इमेज देखना है तो हम इमेज टैब डायरेक्टली क्लिक करेंगे। अगर हमको न्यूज देखना है तो हम न्यूज टैब पे क्लिक करेंगे। सेकेंड वाला क्या था? यूज योर कोट्स। कोट्स यूज करेंगे आप। देखो इसकी स्पेलिंग अगर आप रॉन्ग लिखे हो तो प्लीज इसको सही कर लो। यू हैव टू यूज कोट्स, ठीक है। कोट्स यूज करने से क्या होगा? जो भी वर्ड्स है वो प्रॉपरली हर सर्च रिजल्ट में आएंगे। नेक्स्ट है यूज हाइफन टू एक्सक्लूड द वर्ड्स। यू हैव टू एक्सक्लूड सम वर्ड्स। तो उन वर्ड्स को एक्सक्लूड करने के लिए आप डालेंगे। हम लोग ने क्या डाले थे? हमारा एग्जाम्पल था क्रीम माइनस आइस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्रीम माइनस फेस, ठीक है। हम लोगों का एग्जाम्पल क्या था? क्रीम माइनस आइस। नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला, यूज अ कोलन टू सर्च स्पेसिफिक साइट्स एंड फाइल टाइप्स। ये वाला था हमारा, है ना।
ये जो फाइल टाइप्स वाला था ना, ये अलग से दिए थे हमने, बट वी कैन डू इट टुगेदर, वो उसी में हो गया, तो इसीलिए वी कवर्ड इट टुगेदर। सो यू आर यूजिंग कोलन, एक साइड करके सर्च कर रहे हो, इसी के आगे हम क्या लिखेंगे, फाइल टाइप, जिसमें स्पेस नहीं रहेगी, उसके आगे हम लिखेंगे पीडीएफ। ठीक है, या फिर पीडीएफ के बजाय और दो कौन से थे हम लोग ने जो देखे, टेल मी द नेम्स। पीपीटी, यस, डीओसी। और PPT, DOC. डीओसी, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम PPT, सर्च DOC. कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फाइंड अ पेज दैट लिंक्स टू अनदर पेज। सो हाउ वी आर फाइंडिंग अ पेज दैट इज लिंकिंग टू अनदर पेज, यानी वो पेज क्या करने वाला है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कितने पेजेस हमको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ पॉइंट करते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूज द एस्टेरिक्स वाइल्ड कार्ड। तो एस्टेरिक्स वाइल्ड कार्ड जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर यू विल हैव बीच के जो वर्ड्स है वो आप कुछ भी आएंगे, और पहले और आखिर के जो वर्ड्स आपने दिए हो एस्टेरिक्स के दोनों साइड पे, वो जो है आपको सर्च करके देगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट गूगल फंक्शंस कौन कौन से तो दीज वर द 6 फंक्शंस। व्हाई वी आर सेइंग 6, बिकॉज वो फाइल टाइप वाला जो है वो दोबारा आने वाला है, दैट्स व्हाई वी सेड 6 फंक्शंस। ओके, सो फर्स्ट वाज टू डू मैथ्स, सेकेंड वॉज टू सर्च फॉर मल्टीपल वर्ड्स एट वंस, जो हमने एग्जाम्पल किसका देखे थे, इसमें क्या एग्जाम्पल देखे थे हम लोग ने, यस कैन यू चॉकलेट टेल और मी। व्हाइट चॉकलेट। चॉकलेट और केक। नहीं, चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट का ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में देखे थे। केक केक और और कार, कार. केक और कार वाला देखे थे, वेरी गुड। केक केक मटेरियल और होना कार चाहिए। वाला एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट भी देखे थे, यस यू आर राइट। नेक्स्ट उसके बाद ग्रेजुअली ऐड सर्च टर्म्स, यानी आप क्या करोगे, पहले सर्च करोगे, हमने क्या देखे थे, पहले वी सर्च फॉर केक, देन वी सर्च फॉर केक मटेरियल, देन वी सर्च फॉर केक मटेरियल ऑनलाइन। Online. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, तो नियर बाय कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वी कैन यूज नियर मी नियर मी। कीवर्ड। Near. नियर मी, तो आप लिख लो नियर वहां पे मी। जहाँ पे आपने लिखे हो नियर बाय, उधर ही लिख लो, और वी कैन ऑल्सो यूज नियर मी कीवर्ड। नेक्स्ट उसके बाद गूगल सर्च शॉर्टकट्स, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज किए थे, वेदर, वेदर की स्पेलिंग वेदर, पे बहुत वेदर। ध्यान दो, इट शुड नॉट बी रॉन्ग, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन इसके ऑफ। बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। फिर उसके अलावा डिफाइन, यहाँ पे भी आप कुछ भी वर्ड लिख Laptop. सकते हो। ठीक है, Time. एंड उसके अलावा टाइम, एंड देन यहाँ पे प्लेस का नाम जो भी डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, फाइंड अ स्पेसिफिक फाइल, तो ये वाला हम लोग देख चुके थे ऊपर, है ना, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किए। उसके बाद है मनी एंड यूनिट कन्वर्जन। यू कैन डू मेनी टाइप ऑफ कन्वर्जन लाइक माइल्स टू किलोमीटर, इंडियन रुपीज टू यूएस डॉलर एक्सेट्रा, आप कोई से भी कन्वर्जन कर सकते हो। देन वी सॉ सम ट्रिक्स। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि कुछ ट्रिक्स तो हमने नहीं देखे। फर्स्ट वाली कौन सी थी, गूगल अंडर वाटर, सेकेंड वाली थी स्पेंड बिल गेट्स मनी, थर्ड वाली थी नील फंड प्रोग्रेस, एंड फोर्थ वन वाज क्विक ड्रॉ विद गूगल। नाउ अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ट्रिक जो है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स दिख रहा है ना, तो ये फ्रेंड्स जो है ना, एक्चुअली 1994 के एक टीवी सीरियल का नाम है, ये बहुत फेमस हुआ था, इंग्लिश टीवी सीरियल था। उसमें जो ये लोग थे ना, ये लोगों का नाम है, मोनिका, रॉस और जॉय, ये लोगों का नाम है। ठीक है, हम आपको अभी ये ट्राई करके बताते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा ये वाला एक ट्रिक था जो हमने नहीं देखे थे, दैट वाज जेली मारियो। जेली मारियो, आप लोगों ने सुपर मारियो का गेम देखे हो, वो टीवी वाला जो गेम रहता है उसमें आता है, देखो हाथ में प्ले स्टेशन वगैरह में खेलते हैं, सुपर मारियो का गेम रहता है। तो जेली मारियो के अंदर क्या होता है ना, वही गेम रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है घर में, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, गूगल में सिर्फ जेली मारियो टाइप करो, और जो पहला रिजल्ट आएगा ना उसको रन करके देखो। इसका हम आपको वीडियो सेंड करेंगे, ठीक है, अभी आई एम शोइंग यू एंटायर थिंग विथ मोबाइल ना, तो ये जो है ना मोबाइल पे नहीं दिखेगा, इसीलिए हमने ये वाला ट्रिक नहीं दिखाया। ये वाले 3 ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स करके हम सर्च करते हैं, जस्ट अ मिनट, चलो लेट्स कम टू गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम पे आते हैं, यहाँ पे आई एम गोइंग टू फर्स्ट गो ऑन गूगल, सॉरी हाँ गूगल पे आ गए। यहाँ पे
आई एम गोइंग टू फर्स्ट टाइप फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स करके देखो, फ्रेंड्स करके एक सीरियल है पूरा 1994 का, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो कौन कौन से लोग थे यहाँ पे देखो, देर आर, ये एक्टर्स का नाम दिया है, एक्टर्स का नाम नीचे दिया है। वो जो ये ऊपर वाला जो है ना, रेचल ग्रीन, ये जो नाम दिया है रेचल ग्रीन, जॉय ट्रिबैनी, रॉस जेलर, ये सब जो नाम है ना, ये इनके कैरेक्टर्स का नाम है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सर्च, वो जो तीन हम लोग ने देखे थे ना, हम लोग वो सर्च करते हैं। फ्रेंड्स के आगे वी आर गोइंग टू पुट रॉस, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अब यहाँ पे देखो, रॉस जेलर के बारे में आया कि कौन था वो रॉस जेलर। वो रॉस जेलर कौन था, वो सीरियल में एक लड़का था, उसका नाम था रॉस जेलर, ठीक है। वो एक्टर का नाम नहीं था। यहाँ पे सोफा दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो आई विल क्लिक ऑन दिस सोफा। तो ये देखो हमारे गूगल का पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, सेकेंड टाइम अगेन गूगल का पेज थोड़ा सा और टेढ़ा हुआ, लेट्स सी अगेन, और टेढ़ा हो गया, 3 बार हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस द फोर्थ टाइम। ओके, दिस इज वेरी फनी। देखो सोफा टूट गया ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट टाइम जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा गूगल का पेज थोड़ा टेढ़ा होगा, 3 बार क्लिक करने पे होगा। तुमको क्या करना है, वो जो सोफा का कार्टून बना है ना, उसके ऊपर सिर्फ अपनी फिंगर से टैप करना है। आपका गूगल का पेज ना थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, थर्ड टाइम जब आप करोगे ना, तो वो सोफा जो है वो टूट जाएगा ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, ये था फ्रेंड्स रॉस, आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रेंड्स, वी विल सी एक और जो ये था, एक और लड़की का नाम है उसमें मोनिका, ठीक है। ये मोनिका जो थी ना, शी वॉज अ क्लीन फ्रीक, ठीक है, क्लीननेस फ्रीक थी वो, यानी उसको हर चीज की बहुत सफाई करनी रहती थी। वो सीरियल में वो लड़की वैसी थी, वो बहुत सफाई करती थी। तो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एक बकेट है, बकेट के अंदर जो है ना सोप वाटर है, ठीक है। सोप वाटर यूज करते हैं ना हम लोग सफाई करने के लिए, थोड़ा सा सर्फ डालते हैं या फिर सोप डालते हैं थोड़ा सा, तो पानी में पूरा वो झाग बन जाता है, एंड देन वी क्लीन। तो इसके अंदर क्या होगा, हम लोग अब इस सोप वाली जो बकेट है इस पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी गूगल के पेज पे क्या होता है, ठीक है, गौर से देखो। देखे क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ क्लीन हुआ। है ना, क्लीन हुआ। तो किससे क्लीन हुआ, वो जो स्पंज आता है वो स्पंज निकला, और फिर उसने वहां पे जो क्लीन किया, और देखो शाइनिंग आ गई। तो क्या हो रहा है, यू आर क्लीनिंग। तो ये भी एक फन ट्रिक है जो फ्रेंड्स मोनिका करके आप डालोगे। थर्ड वाला देखते हैं क्या है। थर्ड वाला है फ्रेंड्स जॉय, ठीक है। ये जॉय भी एक पर्सन था, इसको जो है फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, पिज्जा आया है ना। अब हम ये पिज्जा पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पिज्जा, ठीक है। क्या हुआ, डिड यू सी व्हाट हैपेंड, यस somebody टेल मी क्या हुआ, तुम लोग ने देखे स्क्रीन पे क्या हुआ, यस मैम। Yes, ma'am. क्या हुआ, कोई तो खा उसने खा लिया। लिया. उसने सब खा लिया है ना। एक पिज्जा पे क्लिक किया, देखो कितनी सारी चीजें आई, केक है, बर्गर है, सैंडविच है, पता नहीं क्या क्या है, और सब उसने ऐसे खींच के खा लिया ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ट्रिक। इस तरीके से ना आपको फ्रेंड्स जो ये सीरियल है ना, उसके बहुत सारे लोगों के नाम मिलेंगे। आप ट्राई कर करके देख सकते हो किसके किसके नाम से गूगल पे क्या क्या आता है। जैसे हम लोगों ने अभी सिर्फ 3 एग्जाम्पल देखे, एक वो रॉस का देखा, उसके साथ उसके नाम के साथ में सोफा आया था। फिर एक मोनिका का देखा, उसके साथ में वो सोप वाटर की बकेट आई थी। और फिर ये जॉय का देखा, इसके नाम के साथ में पिज्जा आया था। तो इसी तरह आप दूसरे भी नाम डालोगे ना, तो यहाँ पे कुछ तो भी आएगा, एक कार्टून जैसा कुछ बन के आएगा। अभी जैसे ये जो एक थर्ड वाला नेम है, देखो यहाँ पे ये रैचल ग्रीन। तो हम यहाँ पे ना रैचल डालते हैं, आप लोग देखो क्या आता है, ये देखो रैचल डालते हैं। यहाँ पे देखो क्या आया, ये जो रैचल का हेयर स्टाइल था, ये दिख रहा है ना रैचल का हेयर स्टाइल कैसा है। तो ये हेयर स्टाइल यहाँ पे बन के आया, ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे देखो हेयर स्टाइल बन के आया। लेट्स सी इस पे क्लिक करने से क्या होता है। देखो इस पे क्लिक करने से क्या होगा, उसके वो वाले हेयर स्टाइल वाले जितने भी फोटोज है ना, सब आएंगे यहाँ पे। और उस तरीके से और भी किसी और के अगर वैसे फोटोज है तो वो भी आएंगे, समझा। यस Yes, मैम। ma'am. अंडरस्टूड। Yes, ma'am. तो सारे Yes, ट्रिक्स ma'am. जो थे वो सारे कवर हो गए।